Okay. Um, Hello everyone. Good morning and a warm welcome from UPG's Finance and Investment Cell, IQAC and BMS Department. I'm Juhi Shah, Secretary of Finance and Investment Cell. While money doesn't grow on trees, it can grow when you save and invest wisely. As we all know, an investment in knowledge pays the best interest. We are really overwhelmed to announce that today we are going to gain knowledge from our accomplished speaker, Professor Saurabh Bajaj. Professor Saurabh Bajaj is a known face in the industry with number of degrees such as BE, FRM, MBA, CFGP and AFGP. Professor Saurabh Bajaj is an author, mentor, motivational speaker and wealth planner. He has an MBA from NMIMS Mumbai, one of the top 10 management industries in India. He holds the prestigious FRM degree awarded by GARP USA. Till date, there are less than 15,000 professionals in the world who have been honored with this degree. After working for renowned names like JP Morgan and Bombay Stock Exchange, he started his own venture, Nidhi Investments and Knowledge Circle. His blog www.professorbajaj.com has a readership from 78 countries across the globe. He features in Wealth Veda series on Tatva World channel on YouTube. His first video recently crossed 16,000 plus views in just 6 days. He also features in the series Think Smart with Professor Bajaj on High IQ Lifestyle channel on YouTube, wherein he talks on life skills. He has been invited by several TV channels like Spin TV, CNBC, TV18 to address queries of viewers related to investments, real estate, etc. Till date, he has trained more than 10,000 participants over 300 plus organizations. He not only trains investors but also trains financial advisors, businessmen, bankers, etc. Yeah, and the list of his accomplishments is never ending. We are really honored to have him as a speaker for the event. Over to you, sir. Sorry, sir, but you are on mute. Yeah, sorry. Am I audible now? Yes, sir. Yeah. Okay. Thank you, Chuhi, for this wonderful introduction and very good morning to all of you. So, I think most of you have kept their cameras off. Is it deliberate or is it a protocol or what is it like? So if you can switch on your cameras, it will be really nice because भाई मेरे session में सोने का कोई scope नहीं है and you have chosen to be here. So I am sure you are going to enjoy for this 1.5 hours whatever time we talk. So I will just suggest कि आप लोग सब अपने cameras on कर लीजिए and be very interactive. What I will suggest is जब मैं आप लोगों से कोई भी questions पूछूं तो उसके आंसर्स आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपको यदि कोई क्वेश्चन है इट कुड बी अ गुड आइडिया कि उस क्वेश्चन को आप थोड़ी देर होल्ड करें बिकॉज देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि नेक्स्ट स्लाइड में आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया। फिर भी अगर आपको लगता है इट इज वेरी अर्जेंट, मे बी यू कैन रेज योर हैंड और समथिंग एंड आई विल आस्क यू। और टुवर्ड्स द एंड we have a elaborate Q&A session for almost 20 minutes. Is that right, Dheer? Yes, sir. Last 20 minutes. Yeah, so we have a 20 minutes. तो we'll ensure कि आपके जितने भी questions हैं उनके answers you get to your satisfaction, right? So are we all ready? Yes, sir. You okay. Can. So is everyone able to see my screen? Yes, sir. Yes, sir. Okay, great. So friends, our topic for today is personal finance and investment journey. So before we go ahead, I would like to ask some of you, what do you mean by personal finance? Any thoughts? Any what is that you know about personal finance?
If anyone is writing in the chat box, I'll request Dheer to please read it out for me because I'm not able to see the chat box right now. Any thoughts? Have you heard of this term called personal finance? Anything that you know about this term? So Reha has written saving and investing your money. Okay, saving and investing your money. Perfect. So this is yes a very important part of personal finance. Managing our own money. Managing your own money, that's a very close to the right definition. Absolutely. So yes, we will talk about personal finance, and then we will talk about the investment journey. Okay, how many of you like to hear stories, or you want the investments to be told in a very boring and monotonous way, or do you want it through stories? So through stories. Stories. Okay, great. So we all love stories. So yes, we will discuss the investment journey with the help of some stories, so that you make money at the same time you don't get bored with it. Very good. So let's start. Let's start with the meaning of personal finance. Now, iska meaning jo hai, it is hidden in the name itself. The word personal finance is made of two words, and that is personal and finance. Now, the catch here is most of us focus 80% on finance. We think that personal finance is 80% about finance and only 20% about being personal. Like someone said, managing your own money. So finance could be common for everyone, but when it comes to personal finance, it is very, very person specific. It is specific to you. ठीक है? तो personal finance में what you actually do is you have to give your 80% focus to personal, that is you, and only 20% focus on finance. Now, to help you understand this, so your end result looks like this: you give 80% focus to personal and only 20% focus to finance. Now, to help you understand this better, let's take one example. So there are three people who are coming to you, Amar, Akbar and Anthony. So Mr. Amar is 28 years old. He is salaried. He is married. As of now, he does not have any kids. There is Mr. Akbar, who is 25 years old. He is a freelancer. He is single. And there is one Mr. Anthony, who is 30 years old. He is a businessman. He is married and he has one child. Now, all three have asked you a single question. Tell me the best investment. Okay. Now, you tell me with your own understanding and intelligence. Can there be a best investment which will be equal for all three? Can the answer be same? तीनों को बेस्ट इन्वेस्टमेंट चाहिए, क्या आंसर सेम हो सकता है तीनों के लिए? Why it cannot be same? The simple enough answer is the answer cannot be same because their personal profiles are different. फाइनेंस सेम हो सकता है लेकिन तीनों अलग अलग पर्सन्स हैं, तीनों का एज अलग है, तीनों का स्टेबिलिटी ऑफ इनकम अलग है, तीनों का फैमिली साइज अलग है. तो दैट इज हाउ यू हैव टू सी इट कि अगर तीनों के पर्सनल प्रोफाइल्स आर डिफरेंट, देयर फाइनेंशियल प्लानिंग और देयर पर्सनल फाइनेंस इज गोइंग टू बी टोटली डिफरेंट. So when we say about personal finance, it is 80% about personal. That is what matters more for you is what is the age of the person, what is the family size, what are the goals. उसके लाइफ के गोल्स क्या हैं? There are many people जिनके लाइफ के गोल्स हैं, I want to retire by the age of 40, I want to retire by the age of 45, फाइनेंशियली फ्री होना चाहता हूँ, या different people have different goals. उनके लाइफ के गोल्स क्या हैं? Accordingly आपका फाइनेंशियल प्लानिंग होगा. What is your risk profile? आप कहने के लिए तो सब कुछ करना चाहते हो, लेकिन आपका रिस्क टेकिंग एबिलिटी इज वेरी लेस. जरा सा कुछ मार्केट शेकी हुआ नहीं कि आपको डर लगना स्टार्ट हो जाता है. All those things also need to be taken into consideration. Stability of income, very very important. अभी someone is having a salaried job, मतलब उसका मंथली इनकम रेगुलरली आ रहा है. Someone is a freelancer, मतलब आज काम मिल गया, हो सकता है इससे 6 महीने बाद में वो जब प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा नेक्स्ट काम नहीं मिलेगा. Businessman, business keeps going up and down. So when your stability of income is different, the investment product for you is going to be totally different from what it is being advised to a salaried guy.
And when it comes to finance, yes, of course, we need to have some knowledge about the finance. That is the 20%. That is, we need to understand what is economy, what are the different asset classes. Okay, if anyone knows what about the asset classes, I am, given to understand that you are from the finance field. Some of you are from the finance field. So what are the asset classes, if someone wants to spell out? Are there any answers coming in, Dheer? Yes, sir. Commodities, real estate, equity. Okay, that's absolutely right. So we have the major asset classes as equity, debt, real estate, and commodities. Commodities में mainly it is gold, right? So then sectors कौन से होते हैं? हर एक asset class के साथ में या हर एक product के साथ में what are the risks associated? What are the financial parameters जिसके ऊपर में एक product को आप study कर सकते हो? This is definitely the finance part of it. But before understanding the finance part of it, the personal profile of an individual is to be studied. ये मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ पर्सनल फाइनेंस के बारे में. अगर आप फाइनेंस को इन जनरल पढ़ना चाहते हैं, कॉर्पोरेट फाइनेंस, ऑल दोस थिंग्स यू वांट टू स्टडी, obviously your focus has to be on the finance. But if you want to understand personal finance, your 80% focus has to go on the personal front. Okay, so let us start with the इन्वेस्टमेंट जर्नी. एंड एज आई टोल्ड यू, ये इन्वेस्टमेंट जर्नी जो है ये मैं आपको बताने वाला हूँ विद द हेल्प ऑफ स्टोरीज. सो लेट अस स्टार्ट विद द स्टोरी नंबर 1, दैट इज द पावर बैंक. ओके, सो बिफोर वी स्टार्ट द स्टोरी आई वांट टू आस्क यू वन क्वेश्चन. आप में से कितने लोग पावर बैंक यूज करते हैं? Dheer, to help me with the numbers, please. If someone is raising hands or answering in the chat box. 4 to 5 people have raised their hands. Okay, I think, great. sir, everyone uses the power bank. Absolutely, everyone is using the power bank. That's interesting. Okay, so now my next question is, why do you use a power bank? क्या जरूरत है power bank use करने की? आपके पास इलेक्ट्रिसिटी है, आपके पास चार्जर है, आपके पास मोबाइल है. You can charge your mobile. Why do you need a power bank? So few answers are it's portable for backup. Okay. For mobile charging. Exactly. So basically what we want to say is, अगर कहीं हम ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इज नॉट अवेलेबल फॉर अस, तब ये जो पावर बैंक है ये हमारा मोबाइल चार्ज करने के काम आएगा. अच्छा, लेट मी गिव अ सोल्यूशन टू दिस कि आपको पावर बैंक की जरूरत नहीं पड़ेगी. आप लोग, आई एम श्योर सब लोग स्मार्टफोन यूज करते होंगे. Silly question, right? Yes, Everyone sir. is using a, yes, everyone is using a smartphone. Now ये स्मार्टफोन जो होता है इसके वजह से आपको पावर बैंक की जरूरत पड़ती है. If you go back to the old keypad phone, Nokia 1100 or something like that, उसका बैटरी 3 दिन चलता है, ठीक है? फिर आपको पावर बैंक की जरूरत नहीं पड़ेगी. How many are willing to go back to that? Sir, none. None. Yes, because we want all those features, we want all those facilities with us. तो जिस तरह से हमें स्मार्टफोन चाहिए और स्मार्टफोन को चार्ज करने के लिए, भले उसका बैटरी ड्रेन आउट हो रहा है, उसके लिए हम अपने लिए एक पावर बैंक रखते हैं. सिमिलरली, जब आप अपनी अर्निंग लाइफ में होते हो, जब आपका इनकम आ रहा है, इट इज लाइक द इलेक्ट्रिसिटी कमिंग योर वे. मतलब वो इलेक्ट्रिक सप्लाई आपके पास आ रहा है, आपका जो फोन चार्ज हो रहा है, मतलब आपकी लाइफ में जो फैसिलिटीज आपको चाहिए, आपको, आपकी फैमिली को, यू आर प्रोवाइडिंग फॉर देम. बट if there is a stage wherein the income is stopping, let us say अभी कोविड में कुछ लोगों का जॉब लॉस हो गया, कई सारे शॉपिंग मॉल्स, ऑल दोस थिंग्स वर क्लोज्ड, दोस पीपल आर नॉट हैविंग दैट इनकम. अभी अगर उन्होंने अपने लिए सेविंग्स करके नहीं रखा है, उन्होंने अपने लिए प्लानिंग करके नहीं रखा है, दैट मीन्स उनका पावर बैंक चार्ज नहीं है या उनके पास पावर बैंक नहीं है. नाउ इमेजिन, आपके पास इलेक्ट्रिक सप्लाई नहीं है, आपके पास कितना भी अच्छा स्मार्टफोन हो, कैन यू यूज इट? द आंसर इज नो. सो सिमिलरली, जिस तरह से आपको अपना स्मार्टफोन यूज करने के लिए एक पावर बैंक चार्ज करके रखना पड़ेगा, उसी तरह से अपने इमरजेंसीज के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, बिकॉज यू कांट टेक योर इनकम फॉर ग्रांटेड. यू कांट से कि ये मेरा इनकम कभी बंद नहीं हो सकता है. रिसेंटली आई एम श्योर आपने बहुत सारे
टीवी स्टार्स, फिल्म स्टार्स के बारे में सुना होगा, जो अपने टाइम में दे वर द लीडर्स, मतलब दे वर द सुपरस्टार्स, लेकिन व्हेन उनको काम मिलना बंद हुआ, उसके बाद में द सिचुएशन वाज सो बैड कि उनके पास में खाने को पैसा नहीं है, हॉस्पिटल का बिल भरने के लिए पैसा नहीं है. सो फॉर सच सिचुएशंस वी नीड टू सेव, वी नीड टू प्लान फॉर आवर ओन फ्यूचर. सो दैट इज द लेसन फ्रॉम द स्टोरी ऑफ पावर बैंक, कि अगर हमें अपने स्मार्टफोन की तरह, जैसे हमारे स्मार्टफोन में बहुत सारे फीचर्स है, हम चाहेंगे कि हमारी लाइफ में भी बहुत सारे फीचर्स हो. वी डोंट वांट टू लिव टोटली डल लाइफ. लेकिन अगर ये डल लाइफ नहीं जीनी है, तो इसका मतलब है कि हमें एक स्टडी सोर्स ऑफ इनकम शुरू रहना चाहिए. और वो स्टडी सोर्स ऑफ इनकम कब शुरू रहेगा? जब आप अपने लिए एक बैकअप भी क्रिएट करके रखेंगे. सो moral of the story is we need to save for our future, जिसको हम also बोल सकते हैं saving for the rainy day. जैसे अभी I am presuming that most of you will be from Mumbai. मुंबई में लॉकडाउन की जरूरत नहीं है. जब इट रेन्स टू हेवीली एंड देयर इज अ वाटर लॉगिंग, बहुत बार लॉकडाउन जैसा सिचुएशन आ जाता है, वी आर नॉट एबल टू मूव आउट और थिंग्स लाइक दैट. तभी हमारे जो पेरेंट्स है, व्हाट दे डू इज दे स्टॉक अप द इन्वेंट्री, कि भाई अगर किसी दिन बहुत बारिश आ गई, तो अगर हम बाहर से नहीं बाहर नहीं जा पाए, सो ऑल दोस थिंग्स शुड बी अवेलेबल इन आवर हाउस. सिमिलरली, तो ये जो है कि फॉर द रेनी डे जिसको हम बोलते हैं, किसी दिन ऐसी सिचुएशन आई कि वी आर नॉट एबल टू एक्सेस द मनी और वी आर नॉट एबल टू अर्न मनी, तब हमारा ये जो इमरजेंसी फंड है या जो हमारा प्लानिंग है, दिस मनी शुड बी अवेलेबल टू अस फॉर रनिंग अवर डे टू डे एक्सपेंसेस. Okay, let's come to the story number 2. How many of you are interested in mathematics? Sir, about 5 to 6 people have raised 5 their to hands. 6. Okay, great. Okay, and how many of you are interested in playing a game right now? Sir, about 10 to 12 people have raised their hands. Okay, so when it comes to mathematics, 5 to 6 people, and when it comes to playing game, 10 to 12 people. That's an interesting number. But anyways, so we, pardon? नहीं चला रहा हूँ. Okay, so we are going to play a mathematical game. आप लोग ने अगर अपने पास में एक पेपर और पेन रखा हुआ है, so you can note down this and you will tell me the answer of this simple mathematical question. So there is a well. इस well के bottom में एक ant है. ये well की जो depth है that is 10 meters. और इस ant को well से बाहर आना है. इसकी जो बाहर आने की ताकत है, every day it can climb up 4 centimeters. ठीक है. लेकिन जो वेल की इनर वॉल्स है, दे आर वेरी स्लिपरी, तो उसकी वजह से वो एंट फिसल जाती है बार बार. तो वो 6 सेंटीमीटर्स नीचे फिसल जाती है एवरी डे. राइट नाउ यू हैव टू कैलकुलेट एंड टेल मी इन हाउ मेनी डेज द एंट विल कम आउट ऑफ द वेल. All finance people, intelligent people, I am sure you will be able to crack this easily. So everybody is saying the ant won't be able to come out. Who is saying? So Juhi, Bhakti, Raghav, Dhruv. Okay, 4 people are saying it won't be able to come out. यार ऐसे मत करो यार. The ant wants to come out. I think I want to know how much time does the ant slip back? Like, what is the probability of ant climbing up versus slipping back? Every time, every day. So you can find out every day 4 centimeter up and every day 6 centimeter down. Then to never. Never. Okay. So you are absolutely right. The answer is never. The ant will never come out. Why it will never come out? Because it's slipping 2 centimeters down every day. Yes. So, I mean, so eventually you're at the same place. Yes. So the net distance traveled every day is -2 centimeter. Right? जितना ऊपर जा रहे हैं उससे ज़्यादा नीचे जा रहे हैं, and that is why the ant is not able to come out. Now,
you have very rightly found out the answer to this question. अभी इसी को हमें extrapolate करना है to personal finance. हम में से बहुत सारे लोग ये करते हैं, especially हमारे parents या people around us, they think that our money is very very safe in a fixed deposit. बैंक का fixed deposit का interest rate क्या चल रहा है? Any idea? Anyone wants to answer that? 6%. Okay, so yes, it is 5.5 to 6%. Absolutely right. Acha, is it taxable or tax free? The interest on fixed deposit, is it taxable? If you don't know, it's okay. I'll tell you. Okay. Sir, it's So taxable above 10,000. So that is about the savings interest. FD interest is taxable from the first rupee, right? Okay. Yeah. So the fixed deposit interest is taxable from the first rupee. अब अगर आपका पैसा fixed deposit में रखा हुआ है और उसके ऊपर 5.5% आपको interest मिल रहा है और उसके ऊपर आपको 30% tax pay करना है. If anyone wants to calculate what is the post-tax return on this? Five and a half % is your rate of interest and 30% is the tax you are paying on that. Arey, finance people, what is happening? I think nobody's able to do it. So 3.5? Yeah, so it comes to around 3.85. We can round it off to 4% also. Here around 4%. So 4% is your post-tax return from the fixed deposit. Okay, what is the average inflation we have over the period of time? Let us say in the last 10 years or whatever. What is the average inflation we are facing? Nearly 5 to 6%. Okay, 6 to 7% is the inflation we are facing. तो मतलब हमारा पैसा जो है वो grow हो रहा है 4% से और inflation से it is getting eaten up every year by 6%. Do you think that money is growing? No. Yes, because the money is going negative every year by 2%. The same way, जिस तरह ये ant 4 सेंटीमीटर ऊपर चढ़ के 6 सेंटीमीटर नीचे जाती है तो कभी इस वेल से बाहर नहीं आ सकती है. अगर हमको लगता है कि हम फिक्स डिपॉजिट या ऐसे किसी भी इंस्ट्रूमेंट में पैसा रखकर जो कि पोस्ट टैक्स हमको इन्फ्लेशन से कम रिटर्न्स दे रहा है तो हम अपना वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं. द आंसर इज अ बिग नो. सो moral of the story is in the long term your investment returns should be more than inflation. Okay, let me ask you another question now. अगर इस ant को बाहर आना ही है, what it needs to do? Can it do anything about the 6%? The 6 centimeter? जो स्लिपरी है वॉल का स्लिपरीनेस है उसके बारे में कुछ कर सकती है एंट? नो. व्हाट इट कैन डू? Everybody is saying it could climb more than 6 centimeters. Yes, उसको अपनी ताकत बढ़ानी पड़ेगी, उसको 6 सेंटीमीटर से ज्यादा क्लाइम करना पड़ेगा. तो एग्जैक्टली द सेम वे आपका जो पैसा है, आपका जो इन्वेस्टमेंट है, उसके लॉन्ग टर्म रिटर्न शुड ऑलवेज बी मोर देन इन्फ्लेशन. तभी जाके आपका वेल्थ क्रिएट हो पाएगा, तभी जाके आपकी एंट उस वेल के बाहर आएगी. अदरवाइज आप इस डिल्यूजन में रहोगे कि मेरा वेल्थ क्रिएशन हो रहा है, मेरा पैसा सेफ है, बट अल्टीमेटली इट इज नॉट गोइंग टू क्रिएट एनी वेल्थ फॉर यू. Okay, let's come to the story number 3. So one very common question that youngsters or anyone asks me is कि best investment कौन सा है, right? So before we answer that, let me ask you one question. Which according to you is the best mode of transport? You can write your answer in the chat. So somebody saying through air because of speed. And somebody Okay. said train. Somebody said air, somebody said train. Okay. Any other answers we have? So it's more of airways. More of airways.
Yes, sir. ओके, सो जिन्होंने भी एयरवेज लिखा है, आई विल आस्क देम अ क्वेश्चन. आप जहां भी रहते हो, आपके घर के अक्रॉस द रोड देयर इज अ किराना शॉप, जहां से आपको जाके कुछ यू वांट टू बाय सम स्टफ. विल यू टेक अ फ्लाइट टू गो टू दैट किराना शॉप? No, sir. Then what will you do? So somebody said walking. Yes, so you will walk, or if you have a two-wheeler, you will take a two-wheeler, something like that. So when we say the best mode of transport, it will always depend on the distance you want to go. अगर आपको 100 meters जाना है तो आपका the best mode of transport will be different. अगर आपको 200 kilometers जाना है तो the best mode of transport is going to be different. और अगर आपको 1000 kilometers plus जाना है तो the best mode of transport is going to be different. इसका मतलब है there is nothing called as best. It is always dependent on the distance you want to travel. Similarly, जब भी मुझसे कोई पूछता है what is the best mode of investment or what is the best investment, it will always depend on your risk profile, your time horizon. आपका time horizon क्या है, आपके goals क्या हैं, आपका risk profile क्या है, हमेशा आपका best investment उसी पे depend करेगा. It cannot be uniform for everyone. Now, some people, I'm sure आप तो youngsters हो तो आपको ये अभी तक belief नहीं होगा, but you might be hearing this from your elders कि जो wealth creation होता है वो हमेशा property में होता है, right? कितने लोगों ने सुना है ये अपने elder से या अपने people around you? Wealth creation जो property में होता है वो तो और कहीं हो ही नहीं सकता. Real estate. Sir, about 12 to 15 people have raised their hand. Yes, तो आपने सुना है. Now let us burst that myth as well. So there are two people. There is one person who has purchased a plot or a flat in 1996 in 10 lakh rupees, right? आज का उसका जो value है, it is 2.5 crores. So 25 times growth हो गया. Do you think this is good wealth creation? Yes, no? Yes, sir. Yes, this is fantastic wealth creation, right? 25 times आपका पैसा grow हो चुका है. अच्छा, do you think anything will be able to beat this? Okay. So maybe equity. Maybe equity. Okay, let's see. So there is another person जिन्होंने 10 लाख 1996 में इन्वेस्ट किया था एक मिड कैप डाइवर्सिफाइड फंड में. तो अभी जैसे जो भाई साहब ने प्रॉपर्टी में डाला था उनका 10 लाख का 2.5 करोड़ हो गया. तो ये इन्होंने म्यूचुअल फंड में डाला था, इनका क्या हुआ होगा? 2.5 करोड़ से कम हुआ होगा, ज्यादा हुआ होगा, इक्वल हुआ होगा, क्या हुआ होगा? Sir, it could be more. Everybody is writing. It would be more. मतलब you are Yes. saying कि real More than estate 2.5. रियल एस्टेट से हाँ. भी ज्यादा ग्रोथ हुआ है, ऐसा बोल रहे हो? Yes, sir. ओके, बट पीपल अराउंड यू तो से कि पैसा तो खाली प्रॉपर्टी में बनता है. एनीवेज, लेट्स सी. तो द वैल्यूएशन ऑफ दिस 10 लाख रुपीस राइट नाउ इज 19.3 crores, right? So the growth is 193 times. Is it a good wealth creation? Yes. Yes, sir. Yes. तो ये अभी नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि भाई ठीक है, प्रॉपर्टी से ज्यादा पैसा इधर बना. नाउ प्रैक्टिकली क्या ये इतना पैसा किसी का बना? व्हाट डू यू थिंक? प्रैक्टिकली वाज एनीवन एबल टू क्रिएट अ वेल्थ ऑफ दिस मैग्नीट्यूड? 10 लाख का 19 करोड़ हुआ क्या किसी का ऐसे? No, व्हाट डू यू sir. थिंक? No, सॉरी, नो, क्यों नहीं हुआ? very few people have that kind of patience. एग्जैक्टली, बिकॉज म्यूचुअल फंड या इक्विटीज इनको 25 इयर्स के लिए होल्ड किया जाता है. ये हमारे यहाँ पे सिखाया ही नहीं जाता. वी डोंट हैव दैट माइंडसेट. हमारे यहाँ पे शेयर्स एंड इक्विटी इज अ मैटर ऑफ डेज, मंथ्स, मे बी आवर्स. 2 घंटे में कितना पैसा बन सकता है, 2 दिन में कितना पैसा बन सकता है, 2 महीने में कितना पैसा बन सकता है. वी आर ऑल फोकस्ड ऑन दिस. और जिन लोगों ने इस फंड में भी इन्वेस्ट किया उनके साथ में भी कुछ ऐसा ही हुआ. सो
But do you all agree कि 10 लाख से 19.3 crores is a great wealth creation? Yes, sir. 100%. Yes, sir. Yes. Now let us understand कि इस fund का journey कैसा था. Did it all go up, or what happened with this? So if you see 1996 से almost 2003 तक this fund was flat. 7 years. 7 years तक इस fund में कोई returns ही नहीं थे. क्या हुआ होगा आपके हिसाब से? जितने लोगों ने इन्वेस्ट किया होगा 10 लाख रुपया या 10,000 रुपया या जो भी अमाउंट इन्वेस्ट किया है, 7 years तक अगर रिटर्न नहीं दिखते, क्या किया होगा इन लोगों ने? विड्रॉ कर लिया होगा. विड्रॉ कर लिया होगा. तो दैट इज व्हाट वी आर सेइंग कि आप जब लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के बारे में सोचते हो और बीच में आपके साथ में ऐसा होता है, मेनी ऑफ अस लूज अवर पेशेंस, एंड दैट इज व्हाट हैपेंड विद मोस्ट ऑफ द पीपल, क्योंकि हमें इक्विटी या इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, ये जो लॉन्ग टर्म का जो कॉन्सेप्ट है, ये अभी तक समझ में नहीं आया है. एंड दैट इज द रीजन व्हाई पर्सनल फाइनेंस और अंडरस्टैंडिंग ऑफ पर्सनल फाइनेंस बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. आपको फाइनेंस की कितनी समझ है उससे ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है कि क्या आपके पास में 25 साल है. यस, इफ यू आर एन इंडिविजुअल हु इज ऑलरेडी 55 years old और 60 years old, आप बोलोगे यार 25 साल का पेशेंस में कैसे रखूं, आई डोंट नो इफ आई विल लिव टिल 85 और नॉट. बट इफ यू आर अ 20-25 year old इंडिविजुअल, देन क्या आपके पास में 20-25 साल का समय नहीं है? एब्सोल्युटली है. बट आर यू रेडी टू कीप दैट पेशेंस फॉर दोस 20-25 years? दैट इज द होल क्वेश्चन. इफ यू आर, then you have the potential of growing your wealth. ठीक है, 193 times हमने बोला, 100 times तो definitely आप grow कर सकते हो. All you need to have that patience. Okay, let's come to the importance of asset allocation. अच्छा, आप में से कितने लोगों ने थाली खाया है कभी? थाली रेस्टोरेंट जो होते हैं हमारे, उसमें जाके थाली खाया है? Sir, a lot of them. Lot of them. Okay. जिन्होंने नहीं खाया है वो यहाँ पे देख लीजिए. देख के बहुत स्माइल आ गई कुछ लोगों के फेस पे. वेरी गुड. ओके, सो व्हाट ऑल थिंग्स आर देयर इन द थाली? इज इट ओनली वन थिंग और many थिंग्स? So many things. Many things. So why do we have so many things in the thali? Why can't it have only one thing? एक चीज भी खाएंगे तो पेट तो भर जाएगा ना हमारा. Why does it need So to have so everybody many? wants variety. Everybody wants variety. Okay. Other than that, It's good to have a taste of everything. okay. So you are right. Other than taste, I will say कि हमारी बॉडी की जो न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट है, there cannot be a single food जो सारे न्यूट्रिएंट्स हमको दे सके. There will be some food जिसमें प्रोटीन्स होंगे, there will be another food जिसमें विटामिन्स होंगे, कुछ और होगा जिसमें आयरन होगा, कुछ और होगा जिसमें कैल्शियम होगा, है ना. एंड आवर बॉडी रिक्वायर्स ऑल ऑफ दिस. तो इसलिए हमारा जो खाना बनता है, हमारे घर में बनता है या हम लोग बाहर जाके थाली जो खाते हैं, उसमें व्हेन यू हैव द एंटायर बैलेंस डाइट, तब जाके आपकी बॉडी को रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं. सिमिलरली आपके पोर्टफोलियो में सभी एसेट क्लासेस की जगह है, सभी एसेट क्लासेस की जरूरत है. वी कांट से कि ये वाला बेस्ट है और ये वाला जरूरत नहीं है. सो जैसे आपके पोर्टफोलियो में रियल एस्टेट, इक्विटी, गोल्ड, कैश, सभी चीजों की जरूरत है. अभी लेट मी गिव यू एन एग्जांपल. अभी अफगानिस्तान के बारे में आप लोग सब सुन रहे होंगे. पीपल आर रनिंग अवे फ्रॉम अफगानिस्तान. अगर उनके पास में वहां पे एक बहुत बड़ा बंगलो है अफगानिस्तान में, कैन दे टेक एंड रन इट? क्या लेके भाग सकते हैं? एट द मोस्ट क्या लेके भाग सकते हैं? Cash and gold. That's it. कैश एंड गोल्ड. अच्छा, उनके अफगानिस्तान का करेंसी कोई एक्सेप्ट करेगा अभी? No, sir. है ना. सो व्हाट विल बी एक्सेप्टेबल इज गोल्ड. तो क्यों जब आपका कॉन्फिडेंस आपकी इकोनॉमी में शेक हो जाता है या आपकी इकोनॉमी इज नॉट स्टेबल, तब गोल्ड की डिमांड बढ़ जाती है या गोल्ड की आपको जरूरत बढ़ जाती है. जब आपका इकोनॉमी स्टेबल होता है तब आपकी इक्विटीज की डिमांड बढ़ जाती है. सो दीज आर द डिफरेंट प्रोडक्ट्स. अच्छा, ये कब होगा ये आपको पता नहीं चलेगा. सो दैट इज व्हाई इट इज ऑलवेज अ गुड आइडिया कि अगर आपने एसेट एलोकेशन किया हुआ है, आपने अगर अपना पोर्टफोलियो बिल्ड किया हुआ है, तब आपको कोई ना कोई एसेट क्लास, सॉरी, No, sir. Continue. ओके. सो जब आपने एसेट एलोकेशन किया हुआ है, आपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से, अपने गोल्स के हिसाब से, दैट इज व्हेन आपका पूरा पोर्टफोलियो ग्रो होता है और आपके गोल्स अचीव होते हैं. वन मोर मेजर मिस्टेक दैट मेनी ऑफ अस डू इज वी ट्राई टू पिक अप द लास्ट ईयर्स विनर.
जो पिछले साल का विनर है हमको लगता है वो भी इसी साल का विनर होने वाला है। नाउ लेट मी गिव यू सम एग्जांपल। 2010 एंड 11 में 2 साल तक गोल्ड ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया, तो 2012 में सब लोगों ने सोचा चलो गोल्ड में पैसा डाल देते हैं, और उसके बाद में अगर आप देखेंगे तो कंसिस्टेंटली 2013, 14, 15 तीनों साल गोल्ड वाज द बॉटम मोस्ट परफॉर्मर, यहाँ तक कि -18%, -8% ऐसे रिटर्न्स भी गोल्ड ने दिए। देन लेट अस कम टू अनदर एग्जांपल। 2016 में स्मॉल कैप ने 1.77% रिटर्न दिया। लोगों को लगा स्मॉल कैप अच्छा नहीं है, बिकॉज वी ऑलवेज लुक एट द पास्ट रिटर्न्स, और उसके अगले साल स्मॉल कैप ने 59% रिटर्न दिया। तो अब अचानक से लोगों को स्मॉल कैप अच्छा लगने लग गया, फिर से लोगों ने स्मॉल कैप में डालना शुरू किया, उसके अगले साल स्मॉल कैप हैज गिवन -23% रिटर्न। तो ये जो हमारी गलती है टू पिक अप द लास्ट ईयर्स विनर और उसके हिसाब से अपना आगे का इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी डिजाइन करना, इट्स अ टोटली फ्लॉड स्ट्रेटेजी। वी हैव टू लुक अकॉर्डिंग टू आवर गोल्स, आवर रिस्क प्रोफाइलिंग, एंड उस हिसाब से आपका लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बिल्ड होना चाहिए, नॉट लुकिंग एट द 1 year 2 years return. So what is the moral of the story? There is nothing called as best, it is always suitable. तो जो आपके डिस्टेंस के हिसाब से सुटेबल है वो बेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, जो आपके टाइम होराइजन, आपके गोल्स के हिसाब से सुटेबल है वो आपका सुटेबल इन्वेस्टमेंट है। और डिफरेंट ऑप्शंस आर बेस्ट फॉर डिफरेंट पर्पसेस। आपका जैसे जैसे पर्पस चेंज होगा, अगर आपका इमरजेंसी फंड है उसके लिए आपको अलग इंस्ट्रूमेंट लगेगा, अगर आपका लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन गोल है उसके लिए आपको अलग इंस्ट्रूमेंट लगेगा, राइट? एंड एसेट एलोकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी आपको ये बोलता है सब बेच के ये चीज ले लो, दैट इज एब्सोल्युटली अ बैड आइडिया। आपका पोर्टफोलियो जितना डाइवर्सिफाइड होगा उतना ही उसमें रिस्क कम होगा, उतना ही उसके ग्रोथ के चांसेस ज्यादा होंगे। लेट अस कम टू स्टोरी नंबर 4, दैट इज रोलर कोस्टर एंड एयरक्राफ्ट। अच्छा, आप में से कितने लोगों ने रोलर कोस्टर राइड किया? So most of them have. Most of A them lot of have. them have Okay. in their hand. Okay. तो रोलर कोस्टर आप क्यों राइड करते हो? Do you use the roller coaster to travel from one place to another? No sir. Okay. क्यों यूज करते हो रोलर कोस्टर? Thrill. 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 Yes, thrill, excitement, Okay. enjoyment, absolutely. So the objective is very very clear. जब आप एक रोलर कोस्टर को राइड करते हो, आपका पर्पस इज नॉट टू रीच एनीवेयर, योर पर्पस इज टू हैव दैट थ्रिल, एंजॉयमेंट, एक्साइटमेंट, राइट? सिमिलरली जो आप में से कई लोगों को पिछले 1-1.5 साल में मैंने देखा है, मेनी यंगस्टर्स आर गेटिंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स इंट्राडे ट्रेडिंग। स्टॉक लिया बेचा, और बिकॉज द मार्केट्स हैव बीन ऑन द राइज, बहुत सारे लोगों को उसमें थोड़ा सक्सेस भी मिल रहा है। But let me tell you friends, intraday trading is almost like riding a roller coaster. It can give you thrill, it will give you excitement, लेकिन ये आपके लिए wealth create नहीं कर सकता है, आपको आपके goals तक नहीं पहुंचा सकता। Okay, let us say you want to go from one country to another, what will you use? An airplane. You will use an aircraft, right? अच्छा, अभी ये जो aircraft है, ये एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाते समय एक ही हाइट पे उड़ेगा, या you know the heights will keep changing or things like that according to the climate? They'll keep changing. It will keep changing. अच्छा, as a passenger are you required to keep track of कि अभी कितना हाइट पे है, कितना ये है, या फिर you will prefer कि चलो let me read a book or watch a movie or sleep in the aircraft? Yes, sir. Do other things, not focus on that. You know, you will do other things because आपने बोल दिया कि भाई मुझे ये एयरक्राफ्ट ये कितनी हाइट पे जा रहा है, कितनी हाइट पे नहीं जा रहा है, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे मेरे टाइम पे अगर ये मेरे डेस्टिनेशन पे पहुंचा देता है, दैट इज ऑल दैट मैटर्स फॉर मी। सिमिलरली आपका जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, दैट इज सिमिलर टू राइडिंग एन एयरक्राफ्ट। अगर आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे बाय द एज ऑफ 50 मेरे लिए 5 करोड़ या 10 करोड़ या जो भी एक अमाउंट आपने सोचा है वो अक्यूमुलेट करना है या वो वेल्थ क्रिएट करना है, ऑल दैट मैटर्स फॉर यू इज उस एज तक जाकर आपका वो 10 करोड़ क्रिएट हो जाए। बीच में मार्केट कितनी बार ऊपर गया, कितनी बार नीचे गया, दिन भर में कितनी बार ऊपर नीचे गया, दैट इज नन ऑफ योर बिजनेस, राइट? सो आपका जो गोल है, आपका जो पर्पस है, दैट हैज टू बी वेरी वेरी क्लियर। अगर आपका पर्पस इज थ्रिल, एक्साइटमेंट, देन ऑब्वियसली यू शुड डू इंट्राडे ट्रेडिंग। वहां पे आप कहीं पहुंचने नहीं वाले हो। जिस तरह से आपका रोलर कोस्टर, इट कैन नॉट help you to reach anywhere, it will just give you thrill and excitement. अगर आपको कहीं पहुंचना है, you need to use the aircraft. Similarly, अगर आपको thrill excitement चाहिए, you can do intraday trading.
लेकिन अगर आपको आपके गोल्स अचीव करने हैं तो आपको अपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के थ्रू ही वो गोल्स अचीव करने होंगे. Sir, somebody's asked, what if the airplane gets hijacked? So what to do in that case? He means that we need to keep a check on our equity or investments we've done, right? What if they tank? So you are absolutely right. So there is a difference between aeroplane getting hijacked and keeping track of the equity investment. Yes, अगर आपने long term investment किया है, doing an annual review of your portfolio is definitely a good idea. What I'm talking about is doing watching the shares throughout the day. आप सुबह 10 बजे ऑफिस गए, आपके बॉस ने कुछ काम बताया और आप देख रहे हो मार्केट में शेयर्स का भाव कितना हुआ है. हो सकता है 2 दिन बाद में आपको जॉब से फायर कर दिया जाए बिकॉज यू आर नॉट पुटिंग यू 100% ऑन द जॉब. आई एम टॉकिंग अबाउट दैट मच इन्वॉल्वमेंट. ठीक है, एरोप्लेन गेटिंग हाईजैक्ट अगर इसको हम इन्वेस्टमेंट से कंपेयर करें, यस, अभी जैसे फॉर एग्जांपल थोड़े दिन पहले फ्रैंकलिन का एक एपिसोड हुआ था, फ्रैंकलिन म्यूचुअल फंड का, अगर आप लोगों ने नाम सुना होगा. यस, देयर वाज अ प्रॉब्लम. देन अगर आपके पास में एक अच्छा एडवाइजर है जिसने आपको उससे रेस्क्यू ऑपरेशन बताया, यस, ऑल दोस थिंग्स आर अवेलेबल विथ यू. सो दीज थिंग्स आर पॉसिबल, बट द सॉल्यूशन टू दैट इज नॉट एरोप्लेन हाईजैक नहीं हो, या एरोप्लेन हाईजैक हो सकता है इसलिए आप रोलर कोस्टर यूज करके तो दूसरे कंट्री नहीं जा पाओगे. सो दैट क्लैरिटी हैज टू बी देयर. Having said कि एरोप्लेन में हाईजैकिंग हो सकता है, yes, there is a possibility. What are the means and ways to mitigate that? That is a totally different story. But that does not, anyways mean कि हाँ ठीक है अभी एरोप्लेन हाईजैक हो सकता है तो मैं काम करता हूँ, रोलर कोस्टर में बैठ जाता हूँ और रोलर कोस्टर लेके I will reach to another country. That is definitely not going to be possible. So short-term trading can give you excitement, but it will not help you achieve your goals. On the contrary, long-term investing will help you achieve your goals. The journey could be boring. तो हमें सबसे पहले डिसाइड करना चाहिए हमें वेल्थ चाहिए या एक्साइटमेंट चाहिए. अगर एक्साइटमेंट चाहिए then there is a totally different story. क्योंकि अभी समझ लीजिए आप में से जिन लोगों ने अब्रॉड अगर ट्रैवल किया है, 16-18 आवर्स की जो जर्नी होती है, इट इज वेरी बोरिंग मेनी टाइम्स. आपको मतलब समझ में नहीं आता अभी 18 आवर्स तक मैं क्या करूँ, बुक पढ़ो, ये करो, वो करो, बट एटलीस्ट यू आर रीचिंग समवेयर. रोलर कोस्टर का जो राइड होता है इट इज वेरी एक्साइटिंग बट यू डोंट रीच एनीवेयर. तो आपका पर्पस हैज टू बी वेरी क्लियर. अगर आप एक्साइटमेंट चाहते हो देन यू डू ट्रेडिंग. अगर आप वेल्थ क्रिएट करना चाहते हो तो यू नीड टू डू द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स. इज इट क्लियर? Yes, sir. Okay. So I don't know if if some of you have heard of this gentleman. वॉरेन बफे का नाम कितने लोगों ने सुना? Everyone, sir. Almost everyone who knows. Almost everyone. Very good. So वॉरेन बफे जो हैं वो इसके बारे में बहुत अच्छी बात बोलते हैं. Risk comes from not knowing what you're doing. हम में से बहुत सारे लोग जो इंट्राडे ट्रेडिंग या इन सब चीजों के प्रति अट्रैक्ट हो रहे हैं, या इवन क्रिप्टो करेंसी फॉर दैट मैटर, कई बार हम लोग ये सोचते हैं कि इसमें रिस्क है, नहीं है. रिस्क क्यों है? बिकॉज हमें पता नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं. मेनी पीपल आस्क मी, ये वाले आईपीओ में अप्लाई करूं क्या? एंड देन आई आस्क देम अ सिंपल क्वेश्चन, डू यू नो व्हाट डू यू नो अबाउट द बिजनेस ऑफ दैट कंपनी, व्हाट डू यू नो अबाउट द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनी? एंड दे आर लाइक, नो, हमको नहीं पता. फिर मेरे फ्रेंड ने किया इसलिए मुझे करना है. दिस इज वेयर द रिस्क इज कमिंग. रिस्क आता है जब आपको पता नहीं होता है कि आप क्या कर रहे हैं. एंड व्हेन यू ब्लाइंडली पुट मनी इन एनीथिंग, दैट इज द रिस्क पार्ट ऑफ इट, और दैट इज द गैम्बल पार्ट ऑफ इट. अगर आप गैम्बल नहीं करना चाहते हो, यू फर्स्ट अंडरस्टैंड, यू फर्स्ट लर्न कि ये सब चीज क्या होती है, इसका फंडामेंटल्स क्या है. आई एम नॉट सेइंग यू बिकम अ प्रो इन दैट. यस, ऑब्वियसली हर एक चीज के प्रो हम नहीं बन सकते हैं. आप अपने आपका जो एक्सपर्टीज है उसी के प्रो बनोगे, बट हैविंग अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग, हैविंग अ बेसिक नॉलेज इज डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू. अदरवाइज आपको यू विल फॉल प्रे टू समथिंग कॉल्ड एज द फोमो. हाउ मेनी ऑफ यू हैव हर्ड अबाउट दिस टर्म फोमो? Almost everyone. Okay, what is it? Fear of missing out. Fear of missing out. सबने कर लिया, मेरा रह गया. एक I don't know, it's an old song, but आप में से कितने लोगों ने सुना है, मन्नू तेरा हुआ अब मेरा क्या होगा? मतलब किसी और का हो गया और मेरा नहीं हुआ, तो we start feeling missing out. हमको बड़ा खराब लगने चालू हो जाता है, हमको बड़ा डर लगना चालू हो जाता है. So someone else is applying for an IPO or I am not applying, I feel like a fool. अरे यार वो इंटेलिजेंट है, मैं बेवकूफ हूँ. Many a times if he is doing something जो उसको समझ में नहीं आ रहा है, he is one who is taking the undue risk. He is one who is doing the foolish things.
अगर आप ब्लाइंडली किसी भी चीज में पैसा डालते हो, ब्लाइंडली किसी भी चीज में इन्वेस्ट करते हो, यू आर डूइंग इंसल्ट टू योर ओन हार्डवर्क। अच्छा, ये जो पैसा आप इन्वेस्ट करते हो, डू यू गेट दैट मनी वेरी इजीली और डू यू पुट लॉट ऑफ हार्डवर्क बिहाइंड इट? व्हाट इज इट? Lot of hard work, sir. लॉट ऑफ हार्डवर्क यू आर पुटिंग बिहाइंड इट। अगर आपने वो हार्डवर्क से कमाया हुआ पैसा एक ऐसी जगह पे डाल दिया जहां पे जिसका आपको कोई नॉलेज नहीं है, जिसके बारे में आपको कुछ पता नहीं है, एंड दैट मनी गेट्स लॉस्ट, देन हु इज टू बी ब्लेम्ड फॉर दैट? अस, बिकॉज हमने वो पैसा कमाने में जितना एफर्ट्स लिया, हमने ये समझने में जरा भी एफर्ट्स नहीं लिया कि हम जहाँ पे पैसा डाल रहे हैं क्या वो सही जगह है या नहीं है, व्हाट आर द फंडामेंटल्स ऑफ इट और व्हाट आर द लॉजिक बिहाइंड इट, राइट? ओके, सो having said that, now I need your help. Okay, so while I was preparing this presentation, I lost my keys. Okay, and आप लोगों ने बताया आप सभी के पास में स्मार्टफोन है, राइट? Everyone has a smartphone? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सबके स्मार्टफोन में गूगल भी होगा? Yes. Yes, sir. Yes, sir. यस। तो अभी मेरी ना चाबी नहीं मिल रही है, तो गूगल से जरा पूछ के बताइए मेरी चाबी कहाँ है। यू कैन यूज योर फोन्स, नो प्रॉब्लम। Is anyone able to find out? I'm waiting. So somebody is asking, okay, Google, where is search key? हाँ, बिल्कुल, you should ask Google यार, Google knows everything and Google can answer all your questions. And somebody's written, we can't. We can't. नहीं, you can't, but Google can, right? Somebody's written, it's in your drawer, sir. It's in my drawer. Did Google tell you? Okay, so this was of course the trick question. The reason why we do this exercise is to understand that somehow we have started believing from the last 15-20 years that Google can answer all our questions, but here is where we need to introspect. Can Google answer all our questions? The answer is no. Google हमारे कौन से सवालों के जवाब दे सकता है अगर हम Google से सही सवाल पूछते हैं। अच्छा, मेरी की कहाँ है ये Google कब बता सकता है? When they personally know about it. No, when someone uploads it on Google or someone uploads it on some web portal कि ये चाबी यहाँ रखी हुई है, Google को खुद को कुछ भी नहीं पता है। Google is a search engine, right? So whenever you ask a question to Google, it just helps you search on the internet, और इंटरनेट पे जिसने जो भी डाला है, without knowing his credentials, without knowing his knowledge, आपको लगता है कि ये जवाब गूगल ने दिया है और आप उस पे विश्वास रखना शुरू कर देते हो। This is where the biggest catch is, right? Supposingly आपने गूगल से क्वेश्चन पूछा, which is the best stock to invest? Do you think Google knows the answer to this question? No, sir. क्या करेगा गूगल? It might just give out the best search results just if anyone's uploaded anything regarding the stock. Yes. It will just So what display. Google does is string matching. String matching मतलब आपने अपने सेंटेंस में क्या लिखा है? बेस्ट स्टॉक। तो जिन जिन लोगों ने अपनी वेबसाइट पे बेस्ट स्टॉक वर्ड यूज किया है, गूगल वो सब बेस्ट स्टॉक वाली वेबसाइट्स को लाके आपके सामने रख देगा। गूगल को नहीं पता कि जिन लोगों ने उसको बेस्ट स्टॉक बोला है या बेस्ट फंड बोला है वो सही में बेस्ट है या नहीं है, बिकॉज वो गूगल का काम नहीं है। गूगल का काम है स्ट्रिंग मैच करना, मतलब आपने अगर बेस्ट स्टॉक बोला है, वो बेस्ट स्टॉक जिसने लिखा है। आई विल गिव यू अनदर एग्जांपल। लेट अस से अगर दादर में एक डॉक्टर है, पीडियाट्रिशियन डॉक्टर जाधव, ठीक है,
मुझे गूगल पे डॉक्टर जादव का फोन नंबर ढूंढना है, एड्रेस ढूंढना है, कैन आई फाइंड इट? Yes, sir. यस, क्योंकि मैं गूगल से क्या सवाल पूछ रहा हूं, आई एम आस्किंग डेटा फ्रॉम गूगल, आई एम आस्किंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम गूगल। जो डेटा और इन्फॉर्मेशन है वो मुझे गूगल से मिल सकती है, ऑब्वियसली प्रोवाइडेड डॉक्टर जाधव या किसी ने वो इन्फॉर्मेशन उस पर अपलोड की होनी चाहिए। अगर वो नहीं की होगी तो नहीं मिलेगा। लाइक फॉर एग्जाम्पल, आप में से कोई अगर अपने ग्रैंडफादर की इंफॉर्मेशन गूगल पे ढूंढने की कोशिश करेगा तो मिलेगी क्या? ग्रैंडफादर या उसके एक जनरेशन ऊपर की कोई इंफॉर्मेशन ढूंढने की कोशिश करेगा तो मिलेगी क्या गूगल पे? No, sir. No, sir. क्यों नहीं मिलेगी? Nobody put it there. क्योंकि आपके ग्रैंडफादर ने या उनके फादर ने अपनी इंफॉर्मेशन पोर्टल्स पे नहीं डाली है ना? सो गूगल कैन ओनली फाइंड व्हाट समबडी एल्स हैज अपलोडेड। नाउ लेट अस कमिंग बैक टू अवर डॉक्टर जाधव वाला एग्जांपल। तो डॉक्टर जाधव का फोन नंबर और एड्रेस मुझे गूगल से मिल सकता है। अगर मैं गूगल से पूछता हूं टेल मी द बेस्ट पीडियाट्रिशियन इन दादर, आपको क्या लगता है द आंसर्स व्हिच आई गेट इज ऑफ इक्वल क्वालिटी एज द अर्लियर, या उसमें बायस रहेगा थोड़ा सा? Sir, will be a little biased. देयर विल बी अ बायस, क्योंकि अभी मैं गूगल से इंफॉर्मेशन नहीं पूछ रहा हूं, अभी मैं ओपिनियन मांग रहा हूं। अभी मैं गूगल को बोल रहा हूं बेस्ट, जब द मोमेंट आई से बेस्ट आई एम आस्किंग फॉर एन ओपिनियन, और ओपिनियन जो है वो गूगल के पास कोई ओपिनियन नहीं है। गूगल विल थ्रो अप व्हाटएवर इज अवेलेबल ऑन द इंटरनेट, राइट? अभी इंटरनेट में किसने उनको बेस्ट बोला, किसने उनको वर्स्ट बोला है, आपको नहीं पता है। सो दैट इज वेयर इट बिकम्स स्लाइटली बायस। नाउ आई एम गोइंग टू द थर्ड लेवल, जहां पे गूगल मेरी हेल्प अगर करने जाएगा या मैं गूगल की हेल्प लेने जाऊंगा, आई एम क्रिएटिंग अ डिजास्टर। लेट अस से मेरे चाइल्ड को वॉमिटिंग हो रहा है एंड आई डायरेक्टली पुट ऑन गूगल व्हाट शुड आई गिव टू माय चाइल्ड हु इज हैविंग वॉमिटिंग, और डायरेक्टली गूगल से मैं मेडिसिन के नाम मांग रहा हूं। नाउ व्हाट डू यू थिंक आई एम डूइंग? एम आई डूइंग द राइट थिंग? No, sir. इज गूगल अ डॉक्टर? No. No, sir. नो। अब वहां पे किसी ने अपलोड किया होगा कि चाइल्ड को वोमिटिंग होती है तो ये करना चाहिए, बट जिसने अपलोड किया है वो बैठा है ऑस्ट्रेलिया में, और उसने ऑस्ट्रेलिया के वेदर के हिसाब से, ऑस्ट्रेलिया के जो चाइल्ड है उसकी हेल्थ कंडीशंस क्या है, उसके खाने, उसने क्या खाया था क्या नहीं खाया था, उसका हाइट वेट कितना है, वो कुछ नहीं लिया मेरे से, ठीक है? डायरेक्टली मुझे मेडिसिन बता दिया। कैन आई अप्लाई दैट मेडिसिन टू द चाइल्ड इमीडिएटली, और शुड आई सी अ डॉक्टर? Doctor. Doctor. So what we need to understand is Google can answer your question related to data and information. It cannot give you advice, it cannot give you wisdom. इसके लिए आपको एक ट्रस्टेड एडवाइजर की, ह्यूमन एडवाइजर की जरूरत पड़ेगी। एंड यू लुक एट योरसेल्फ, कल को आप जब इंडस्ट्री ज्वाइन करोगे, अगर सारी चीजों का जवाब गूगल दे देगा तो आपकी कुछ जरूरत पड़ेगी क्या? whatever studies you are doing, whatever intelligence you are carrying, अगर सब चीजों का जवाब गूगल के पास होगा तो आपकी कुछ जरूरत पड़ेगी? No, sir. Yes, so we need to understand कि human intelligence, human wisdom has a big role to play. Yes, Google is a great tool. Google technology can be a great enabler for passing of information, passing of communication. हमारा communication fast हो गया. Yes, I agree. आज आप और मैं यहाँ बैठ के communicate कर पा रहे हैं with the help of technology. बट अगर ये सारा नॉलेज आपको अगर एक ह्यूमन से नहीं मिलता है, सो ऑन योर ओन इफ यू वांट टू रीड समथिंग और गेट समथिंग, इट कुड बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर यू, राइट? ओके, सो ऑन दैट नोट इट्स 11. Dheer, are we due for a break? Yes, sir. We can take for 5 minutes. Yeah, so we'll take a 5 minutes break, and what time should we start? 11:05? 11:05. Okay, so we'll start with 11:05. We have few more stories to share with you, and I hope अभी तक कोई जिन्होंने join किया है, they are all enjoying the session. See you back at 11:05. Okay.
It's just a 5 minutes break. Stay logged in. Just do not log out.
Okay, should we start Dheer or we wait for another? So we can start, sir. It's 11:06 now. Okay, great. Yeah. Okay, so my screen is visible again? Yes, sir. Yes. Okay. Yeah, so we were discussing about the fifth story, that is, can Google answer all our questions? And we saw that Google can answer only our data and information related questions. For personalized advice, wisdom, we need to look out for a human advisor. Let's come to story number 6, that is about Jay and Viru. Acha, how many of us know Jay and Viru? Sir, a lot of them, lot of swim buffs. A lot of them know Jay and Viru. Okay, so लेकिन हम लोग जिन Jay and Viru की बात कर रहे हैं, ये Jay and Viru are the corporate world के Jay and Viru, not the रामगढ़ के Jay and Viru. So let us see what's with them. So Jay and Viru जब they were 21 years of age, तो दोनों ने अपनी अपनी job start की. And Jay was very interested in savings and investing. तो उसने क्या किया कि as soon as उसको फर्स्ट सैलरी अपना मिला, उसने 10,000 पर मंथ से अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दिया और वो इन्वेस्ट करते गया एंड लेट अस से बाय द एज ऑफ 28 ही गॉट मैरिड. मैरिज होने के बाद में थोड़े एक्सपेंसेस शुरू हो गए, बट स्टिल उसने सोचा कि नहीं थोड़ा करते हैं एंड स्टिल ही कंटिन्यूड हिज एसआईपी. एट द एज ऑफ 31 देन ही वाज ब्लेस्ड विद अ चाइल्ड. और जब चाइल्ड होने के बाद में अचानक से बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस बढ़ गए, तो फिर जय को लगा कि यार अब मैं ये कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा एंड ही स्टॉप्ड हिज एसआईपी एट द एज ऑफ 31. सो यू कैन टेक अ नोट ऑफ दिस कि जय ने 10,000 रुपीज से मंथली अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया, 10 साल तक किया, तो एक साल में 1,20,000, 10 साल में 12 लाख रुपीज. तो 12 लाख रुपीज इज जय's इन्वेस्टमेंट. नाउ लेट अस कम टू वीरू. वीरू वाज द हैप्पी गो लकी पर्सन. बोलता है अरे अभी पहली सैलरी से कौन इन्वेस्ट करता है, अभी मुझे तो ऐश करने दो थोड़ा. तो उसने कोई अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं किया. फिर 28 की एज में शादी हो गई, तभी भी अपना कोई इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं किया. 31 की एज में जाके जब बेबी हुआ और बीबी ने थोड़ा डंडा मारना शुरू किया कि अभी वी हैव रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वी नीड टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग. और जैसे कि वाइफ से सबको डर लगता है, मुझे भी लगता है, तो फिर उसके डर से वीरू ने अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दिया. एक बार जो वीरू का इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हुआ भाई साहब, उसके बाद वो रुका नहीं. तो देन व्हेन ही स्टार्टेड एट 31 ही कंटिन्यूड सीधा जाके इन्वेस्टमेंट उसका स्टॉप हुआ एट द एज ऑफ 60, जब ही एक्चुअली गॉट रिटायर्ड. ठीक है, सो नाउ लेट अस डू सम कैलकुलेशंस. 10,000 रुपीज पर मंथ, तो एक साल का हुआ 1,20,000, 10 साल का हुआ 12 लाख, 30 इयर्स का हुआ 36 लाख. तो दिस इज द डेटा गिवन टू यू. जय ने 12 लाख का इन्वेस्टमेंट किया है, वीरू ने 36 लाख का इन्वेस्टमेंट किया है, और आज दोनों 60 इयर्स के हो चुके हैं, दोनों का रिटायरमेंट है, दोनों को कुछ पैसा मिलने वाला है. व्हाट डू यू थिंक, वीरू के 36 लाख कितना हो गया होगा? I know it's Sir, not it easy. depends on the percent. Also, the return percent. Exactly. So ठीक है, I will give you the amount. ये 12% से इनका रिटायरमेंट अमाउंट जो है वो ग्रो हुआ है. So उनका जो 36 लाख था वो 3.46 crores बन गया. Do you think it's a good wealth creation? Yes, sir. Sir, it's 10 Yeah. times the money. Yes, it's a good wealth creation. ठीक है, अभी वीरू का 36 लाख का 3.46 करोड़ हुआ. जय का इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना था? Sir, 12 लाख था. ठीक है, तो जय का कितना हुआ होगा? एनी आइडिया, एनी रफ एस्टिमेट्स? So maybe 4 crores. That's the idea. 4 करोड़. जय का कम था भाई साहब. Con- जय had invested only 12 lakhs. तो आप बोल रहे हो वीरू से ज्यादा होगा? He invested for longer period. Okay, Yes, so sir. So that money keeps on investing, right? okay. So आप बोल रहे हो कि जय का वीरू से ज्यादा होगा?
Sir, maybe. Maybe मतलब कम भी हो सकता है. अच्छा ठीक है, अगर कम है तो कितना कम हो सकता है, ज्यादा है तो कितना हो सकता है? गिव रफ फिगर्स. आई डोंट वांट टू टेस्ट योर मैथमेटिकल स्किल्स हियर. आई जस्ट वांट टू मेक यू अंडरस्टैंड अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. Sir, ranging from 2 to 5, somewhere in the middle. ओके, सो जय का जो रिटायरमेंट अमाउंट है, इट कैन बी एनीथिंग बिटवीन 2 to 5. 2 मतलब उससे वीरू से कम है, 5 मतलब वीरू से थोड़ा ज्यादा है. एब्सोल्युटली. सो नाउ लेट अस लुक एट व्हाट इज द रिटायरमेंट अमाउंट ऑफ जय. इट इज 8.24 crores. कुछ मिस्टेक है ना कैलकुलेशन में? No, sir. फिर हाउ इज इट पॉसिबल कि जय का 12 लाख जो है वो 8.24 करोड़ हो गया और वीरू का 36 लाख 3.46 करोड़ हुआ? हाउ इज इट पॉसिबल? Started early. Exactly. The moral of the story is you have to start early. जो आप अपने अर्ली इयर्स में जो वेल्थ का पोटेंशियल है, बाद में वो आप 30 इयर्स करके भी उतना वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाओगे जो आपने अगर पहले 10 साल, जैसे मोस्ट ऑफ यू आर यंगस्टर्स, मोस्ट ऑफ यू आर स्टडिंग राइट नाउ, आप अपनी जॉब शुरू करोगे, अगर आपने अपने जॉब के पहले 5 साल या 10 साल ये सोच के वेस्ट कर दिए कि अभी तो शुरू किया है, अभी तो ऐश करना है, अभी तो मस्ती करनी है, I don't deny that, you do all that, but till the time you don't get married, आपको ये भी समझना होगा कि आपके ऊपर financial responsibilities नहीं है या कम है. So you are able to save a very decent amount from your salary. Let us say 50%, 60%, whatever. क्योंकि आपके जो personal expenses है, travel ये वो, इसको छोड़ के भी you can accumulate or you can save a decent amount. इस amount को अगर आपने शुरू से invest करना start कर दिया, the amount of wealth that you can create is humongous. और यही अगर आप सोचोगे अभी छोड़ो, देखते हैं 30s के बाद में शादी वादी हो जाएगी, बच्चे हो जाएंगे, तब तो करना ही है, तब ऑन द कॉन्ट्री, आई डोंट नो इफ यू आर अवेयर, आपके स्कूल कॉलेजेस की फीस आर सो हाई कि जब आपके बच्चे होंगे और उनकी स्कूल की फीस भरना पड़ेगा, तब शायद आपके इन्वेस्टमेंट की कैपेबिलिटी और कम हो जाएगी. सो व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग, आपके ऊपर ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है, दैट इज द राइट टाइम, द राइट एज टू स्टार्ट योर इन्वेस्टमेंट. और यहाँ पे जय ने वही किया, अपने यंग एज से, अपने अर्ली एज से स्टार्ट किया एंड ही क्रिएटेड ह्यूज वेल्थ. वीरू का वेल्थ क्रिएशन कम नहीं है, लेट मी टेल यू. 31 की एज में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना वाज नॉट अ बैड आइडिया. 3.46 करोड़ इज नॉट अ बैड वेल्थ क्रिएट. मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि जो इनिशियल 10 साल जो उसने मिस किए, उसके अंदर में, अच्छा अगर यही जय ने 36 लाख इन्वेस्ट किए होते तो जय का इन्वेस्टमेंट वेल्थ क्रिएशन कितना होता? Sir, a lot more. है ना, ऑलमोस्ट 20-25 करोड़ तक हो जाता. सो नाउ यू इमेजिन कि अगर वीरू और जय के इन्वेस्टमेंट अमाउंट को सेम रखा जाए तो जय का जो वेल्थ क्रिएशन हुआ है दैट इज मच हायर देन वीरू. और द सिंपल रीजन ही स्टार्टेड अर्ली. सो द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज वी हैव टू स्टार्ट अर्ली. यू कैनॉट अफोर्ड टू डिले, क्योंकि जितना आप डिले करोगे उतना आप अपने ही वेल्थ क्रिएशन का नुकसान करोगे. Let us come to the last story, that is story number 7. It is about the Chinese bamboo. तो यहाँ पे एक छोटा सा वीडियो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ. If the audio is not audible, मतलब अगर आपको ऑडियो नहीं सुनाई देता है तो आप वीडियो खत्म होने के बाद में मुझे बता देना, तो I will just summarize the story for you. So we aren't able to hear. It's not audible. You are not able to hear? No, sir.
can't tell. Okay, no problem. So what I'll do is I'll just summarize the story for you. So this story is about a Chinese bamboo. तो Chinese bamboo में क्या होता है कि if someone is doing a farming for the Chinese bamboo और उसका plant अगर आप लगाते हो तो पहले 5 साल तक आप उसको कंटिन्यूसली पानी देते जा रहे हो, फर्टिलाइजर जो कुछ भी उसको चाहिए वो देते जा रहे हो, और 5 सालों में वो जमीन से बाहर भी नहीं आता. So if you are the farmer, what will happen to you? What will be your mindset? If 5 years तक आपने उसको नर्चर किया है और 5 years तक भी आपको रिजल्ट नहीं दिख रहे हैं, so what will be your mindset? What will be your state of? A lot of them will remove it. Frustrated. You will be frustrated. Yes, you will be frustrated. अरे यार कुछ हो ही नहीं रहा है, वेस्ट हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ठीक है. And what it says is after 5 years, in less than 90 days, वही चाइनीज बैम्बू जो है वो 80 फीट तक बढ़ जाता है. मतलब जो 5 साल में नहीं हुआ वो 3 months में हो जाता है. हाउ डज दिस हैपन? कैसे हो गया ये? 5 years तक क्या हो रहा था फिर? कि 5 years तक कुछ हो ही नहीं रहा था. Yes, any answers? So maybe those 5 years of patience led to those 90 days, maybe. Yes, तो वो 5 years तक जो चाइनीज बैम्बू के जो रूट्स थे, they were going deeper. अच्छा, अगर एक 80 फीट के बैम्बू को होल्ड करना है, तो do you think the roots need to be very deep and strong? Yes, sir. Yes. तो उसको 80 फीट जमीन से ऊपर करने के लिए जो रूट्स की जरूरत थी, 5 साल तक ये रूट्स नीचे स्ट्रॉन्ग हो रहे थे जो आपको दिखाई नहीं दे रहे थे, राइट? सो सिमिलरली जब आप एक इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हो, देयर इज अ गुड पॉसिबिलिटी कि पहले 5 साल तक आपको लो रिटर्न्स, नो रिटर्न्स या नेगेटिव रिटर्न्स भी दिखाई दे. There have been instances जहां पे कुछ लोगों ने अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया. एक एग्जांपल मैंने आपको दिखाया, 7 years तक उस फंड में कोई रिटर्न नहीं थे और आज अचानक से उस फंड में 193 टाइम्स का ग्रोथ आ चुका है, राइट? सो ये जो है, दिस इज कॉल फॉर पेशेंस. मतलब हो सकता है आप जब इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करोगे, शुरू में 4-5 साल तक आपको ज्यादा रिटर्न्स नहीं दिखेंगे. हो सकता है 3%, 4% के रिटर्न दिखे और आप बोलो अरे यार ये इससे तो अच्छा मेरे एफडी में रिटर्न्स आ जाते थे या कहीं भी आ जाते थे, एंड यू गिव अप and you pull away that money and you go back to FD or anything like that. And यहीं पे आपका गलती होता है कि अगर आपने वो पैसा, हाँ अगर आपका टाइम फ्रेम ही 2-3 साल था then it is fine. लेकिन अगर आपका टाइम फ्रेम इज लॉन्ग टर्म, अगर आप जैसे जय और वीरू ने लॉन्ग टर्म के लिए वेल्थ क्रिएशन के हिसाब से अपना पैसा इन्वेस्ट किया था, अगर वो लॉन्ग टर्म का आपका होराइजन है तो पहले 5 साल में आप गिव अप मत कीजिए, ठीक है? अभी द रूट्स आर गेटिंग स्ट्रॉन्गर. अगर अभी मार्केट डाउन भी है तो मतलब आपको ज्यादा यूनिट्स मिल रहे हैं आपके इन्वेस्टमेंट के सामने, मतलब आपका बेस स्ट्रॉन्ग बन रहा है, आपके रूट्स स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं. एंड वंस इट स्टार्ट्स पिकिंग अप, उसके बाद में देयर इज नो लुकिंग बैक. नेक्स्ट स्लाइड में एक छोटा सा गेम मैं आप लोगों के साथ में खेलूंगा, उसमें आपको ये चीज और भी क्लियर हो जाएगी. वन थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज इफ यू आर सीरियस अबाउट वेल्थ क्रिएशन, ट्रस्ट मी, आज हमारे साथ में मुझे लगता है यहाँ पे 160 प्लस लोग जुड़े हैं. आप 160 में से सारे लोग वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाएंगे. सॉरी फॉर मी बीइंग वेरी हार्श विथ यू, आप में से सारे लोग वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाएंगे बिकॉज पेशेंस इज अ लर्नड स्किल. पेशेंस सीखना पड़ता है, सब में नहीं होता है. आप में से शायद 5 या 10 लोग ऐसे होंगे जिनमें ये पेशेंस होगा या जो ये पेशेंस को अक्वायर कर पाएंगे, जिसकी वजह से वो उनका वेल्थ क्रिएशन होगा. अगर आप में वेल्थ क्रिएशन का सीरियसनेस है, अगर आप सीरियसली वेल्थ क्रिएट करना चाहते हो, यू नीड टू हैव अ पेशेंस फॉर मिनिमम 15 years. और ये 15 years क्यों है वो मैं आपको दिखाता हूँ. So now this is the journey of our Sensex plotted right from Jan 1991 till March 2021. अभी इसके अंदर में आप देखेंगे कि सेंसेक्स बार बार ऊपर नीचे गया है. व्हाइट जो चिट्स है उसमें रीजंस लिखे हुए हैं कि क्यों मार्केट गिरा या क्यों मार्केट चढ़ा. ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम देयर वर डिफरेंट प्राइम मिनिस्टर्स, डिफरेंट गवर्नमेंट्स, डिफरेंट पॉलिसीज, अर्थक्वेक्स आ गए, 9/11 हो गया, बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, सब कुछ हो गया. यू नो, थिंग्स केप्ट हैपनिंग एंड द मार्केट्स केप्ट
गोइंग अप एंड डाउन, बट अगर लॉन्ग टर्म में इसका डायरेक्शन आप देखोगे तो इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ द एरो दैट यू कैन सी. नाउ लेट्स कम टू द गेम. अब आपको इस ग्राफ में से कोई भी 2 पॉइंट्स सिलेक्ट करने हैं जो 15 साल दूर है एक दूसरे से, 15 साल, 15 इयर्स, ठीक है. एंड यू हैव टू सी एंड टेल मी इफ यू हैव इनकर्ड अ लॉस. मतलब आपने ऊपर में खरीदा और आपको नीचे में बेचना पड़ा 15 साल होल्ड करने के बावजूद, ठीक है. सो यू कैन स्टार्ट. इफ यू वांट मी टू गिव यू एन एग्जांपल, अगर आपने लेट अस से 1991 को चूज किया है तो उसके सामने आपको चूज करना पड़ेगा, लेट्स से आपने लिया जैन 91 तो आपको उसके सामने चूज करना पड़ेगा जैन 2006, क्योंकि वो 15 साल वहां पे हो चुके हैं. एंड देन यू सी कि वेदर द जो आपका एंट्री पॉइंट था और जो एग्जिट पॉइंट था, यस, जो आपका एंट्री पॉइंट था और एग्जिट पॉइंट था, वेदर इट इज द एग्जिट पॉइंट इज हायर देन द एंट्री और लोअर देन द एंट्री पॉइंट. Everybody is saying it's always a profit. We don't Yes. see a minus Yes. after. एग्जैक्टली और ये क्यों हुआ? क्योंकि आपने 15 साल का टाइम दिया. अब यही सेम एक्सरसाइज अगर मैं आपके साथ में करूंगा फॉर 5 इयर्स, आपके पास में बहुत सारे ऐसे एग्जांपल आ जाएंगे जहां 5 इयर्स में आपको लॉस हुआ है, राइट? तो अगर आप 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, 5 ईयर के लिए इन्वेस्ट करोगे, यस देयर इज अ रिस्क, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस. लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए आते हो, दैट इज 15 इयर्स प्लस, यू विल मेक प्रॉफिट. एंड दिस आई एम टॉकिंग अबाउट द ब्रॉडर इंडेक्स, मतलब ये पोर्टफोलियो रिटर्न की बात है. Yes, you can come up with example of a particular company. There are some companies. Let us say if I give you example of Jet Airways or I give you example of Reliance Communication. आप बोलोगे सर 15 साल पहले उसका जो भाव था और आज जो भाव है, it is nowhere. Obviously. तो जो there are individual stocks में अगर आप जाओगे तो और आपने क्वालिटी पिकअप नहीं किया है, हो सकता है 15 साल बाद भी आप लॉस में हो. I am talking about a decently built up constructed portfolio, जो कि जिसमें क्वालिटी स्टॉक्स लिए गए हैं एंड द रिस्क इज डाइवर्सिफाइड. तो जब एसेट एलोकेशन की मैंने बात की, दिस इज वेयर द एसेट एलोकेशन कम्स इनटू पिक्चर. सो लेट अस रिकैप व्हाटएवर वी डिस्कस्ड. नंबर 1, पर्सनल फाइनेंस इज 80% पर्सनल एंड ओनली 20% फाइनेंस. सो अगर आप पर्सनल फाइनेंस समझना चाहते हैं, सबसे पहले अपने आप को समझना शुरू कीजिए. आपकी इनकम, आपकी नीड्स, आपके गोल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सेकेंड इज सेव फॉर योर फ्यूचर. जो पावर बैंक वाले एग्जांपल में हमने देखा, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा सोच के सारा पैसा ब्लो ऑफ करोगे तो जिंदगी यहीं रहेगी, लेकिन आप चाहोगे कि मेरी जिंदगी जल्दी खत्म हो जाए. सॉरी टू यूज सच हार्श वर्ड्स, बट देयर आर मेनी पीपल हु आर प्रेइंग फॉर देयर डेथ बिकॉज पैसा खत्म हो चुका है एंड दे फील वेरी बैड कि मुझे लोगों से पैसा मांगना पड़ रहा है टू लिव फंड देयर ओन लिविंग एक्सपेंसेस. Third is your returns should always be higher than the inflation in the long term. Short term में हो सकता है आपके returns कम ज्यादा हो, but अगर long term में आप inflation को beat कर रहे हो, that is where your wealth creation starts happening. There is nothing called as best. ये best का जो हमको बहुत जुनून हो चुका है, Google पे जाओ best ढूंढो और best हमको मिल जाएगा. There is nothing as that. Look for suitable. आपके जो needs है, आपका जो distance traveled है, आपका जो टाइम होराइजन है, उस हिसाब से आपके लिए जो सुटेबल इंस्ट्रूमेंट होगा, जो आपके लिए सही होगा. डिसाइड वेदर यू वांट वेल्थ क्रिएशन और थ्रिल. आपको लाइफ में वेल्थ क्रिएशन चाहिए या थ्रिल चाहिए, ये आपको डिसाइड करना है. अकॉर्डिंगली यू कैन चूज वेदर यू वांट टू गो फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और यू वांट टू गो फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग. गूगल कैन नॉट आंसर योर एवरी क्वेश्चन. गूगल से क्या पूछना, इसकी समझ पहले हम में होनी चाहिए. You can ask Google for data, you can ask Google for information, you cannot ask Google for opinion, you cannot ask Google for advice. Start early. अपने जो early years हैं उनको waste मत जाने दीजिए, because that is where you will create the difference. And keep patience. There is no substitute for patience. आप सोचेंगे कि बस मेरे हाथ लगाते ही चीज सोना बन जानी चाहिए, ऐसा नहीं होता है. You will have to keep patience. A seed that you sow in the soil, it takes years for it to become a tree. वो ट्री उसको आपको बनने देना पड़ेगा. This is the law of nature. और तभी जाके आपका wealth creation हो पाएगा. So before we end, let us put some Bollywood तड़का, ending on some lighter notes. अच्छा, आप में से I guess most of you are still students, right? Almost everyone? Yes, sir, everyone. Everyone. Few teachers.
यस तो जो स्टूडेंट्स हैं आप अभी भी आपको अपने पेरेंट्स से पैसा लेना पड़ता है, राइट? Yes, sir. यस तो जब पेरेंट्स से पैसा लेते हैं वहां तक तो ठीक है, हो सकता है उसमें भी आपको कभी लगता होगा कि मैं कब अर्न करना स्टार्ट करूंगा. इमेजिन व्हेन यू रिटायर यू हैव टू आस्क मनी फ्रॉम योर चिल्ड्रन. विल यू फील हैप्पी अबाउट इट? आपको अपने बच्चों से पैसा मांगना पड़ रहा है. हाउ मेनी ऑफ यू विल फील हैप्पी कि हाँ ठीक है ना, अपने बच्चों से पैसा मांग लिया तो क्या क्या प्रॉब्लम है उसमें? और यू वांट टू फंड योर ओन रिटायरमेंट. फंड आवर ओन रिटायरमेंट. यस तो जैसे कि है मुझ पर एक एहसान करना कि मुझ पर कोई एहसान मत करना. इफ यू वांट टू मेंटेन दिस एटीट्यूड कि मुझे किसी का एहसान नहीं चाहिए, आई कैन फंड माय ओन रिटायरमेंट, आई हैव प्लान्ड फॉर माय ओन रिटायरमेंट. तो अपना रिटायरमेंट प्लानिंग या अपना फ्यूचर प्लानिंग आपको पहले से स्टार्ट करना पड़ेगा. रिटायरमेंट प्लानिंग रिटायर होने के बाद नहीं शुरू किया जाता है, रिटायरमेंट प्लानिंग आपके अर्निंग ईयर्स में ही शुरू किया जाता है. When markets are volatile in the short term, टेंशन नहीं लेने का, because if you are here for 15 years or more, yes, markets are volatile short term, लेकिन long term में वो आपके लिए wealth create करके देगा. And let's get started. जैसे कि आपने आपके जो invite बनाया था उसमें भी लिखा हुआ था कि take that single step. कितनी भी बड़ी जर्नी हो, एक सिंगल स्टेप से वही स्टार्ट होती है. तो कहीं पहुंचने के लिए कहीं से निकलना बहुत जरूरी है. Whatever ज्ञान you had taken today, you have to start taking some action towards it. अपने पर्सनल फाइनेंस को समझने के लिए आपको जो भी एक्शन लेनी है वो एक्शन आप लीजिए, तभी जाके आप पर्सनल फाइनेंस को समझ पाएंगे, तभी जाके आप अपने लिए वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे. एंड बिफोर वी एंड वी हैव अ गिफ्ट फॉर यू. आज का सेशन आपको कैसा लगा है? इफ यू वांट यू कैन सेंड अ 30 seconds video feedback to us on these numbers. These are the numbers of my two team members, Lakshman and Prathamesh. If you want you can take a screenshot of this slide. और when we receive your video हम लोग आपको एक मेरा e-book भेज देंगे जिसमें there are 10 stories on personal finance. These 10 stories are different from the 7 stories जो हमने आज डिस्कस की. ये 10 stories आपको आपके पर्सनल फाइनेंस की नॉलेज को एनहांस करने में हेल्प कर सकती है. So on that note, this is Professor Saurabh Bajaj signing off. If you want to connect with me, it is very easy. These are my coordinates. या फिर अगर आपको और भी इजी करना है, what you need to do is Google आपके बाकी सवालों के जवाब शायद ना दे पाए, लेकिन एक सवाल का जवाब जरूर दे सकता है कि अगर आपको मेरे वीडियोस देखने हैं या मेरे आर्टिकल्स पढ़ने हैं, just go to Google and type #Professor Bajaj and आपको you will be able to see my articles, my videos, or any other details about me. So on that note, do we open for questions and answers, Deep? Yes, sir. Yes. So first of all, thank you for explaining everything in detail. It opened a lot of concepts for me as well. But we've asked a few people, so said they are really curious about a few concepts and things regarding personal finance. So they've asked us questions on social media. So we'll go one by one. It's quick questions, quick answers. Sure. And people who have questions right now regarding the people, you can put it on the chat box. So should we start? Sure. So the first question is, what apps or things you recommend us when we start out investing for a complete portfolio, or any books or anything? Okay, so first of all, I think the answer to this was partly covered in the session. अगर इसको मैं दूसरे एग्जांपल से आपको बताता हूँ. I want to learn swimming. Which app should I download? Some training. है ना? तो ये जो हम लोगों के माइंड में एक चीज कहीं ना कहीं बैठ गई है कि दुनिया की कोई भी चीज सीखना हो तो उसके लिए एक ऐप मिलेगा, वो ऐप डाउनलोड करने से हम सीख जाएंगे. ऐसा नहीं होता है. वी हैव टू डू सम हार्ड वर्क, वी हैव टू अप्लाई आवर ब्रेन्स. तो जैसे कि मैंने आपको बताया, यस, आपको चाहिए, यू कैन विजिट माय ब्लॉग. उसमें देयर आर मोर देन 75 आर्टिकल्स. ये आप पढ़ सकते हो आपका नॉलेज अपग्रेड करने के लिए. पर्सनल फाइनेंस को मैनेज करने के बहुत सारे मतलब होते हैं. वन इज यू मे वांट टू मैनेज योर एक्सपेंसेस, कि आप कितना स्पेंड करते हो.
आई वुड सजेस्ट कि यू मेंटेन अ डायरी जिसमें आप अपने स्पेंडिंग्स लिखते हो. कुछ एप्स होते हैं जो आपके स्पेंडिंग्स को मॉनिटर करने में हेल्प करते हैं, बट ट्रस्ट मी, आपको पता ही होगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, दोज एप्स आर इन सिंपल टर्म्स डेटा चोर. ठीक है, वो आपके जो डेटा आप डाल रहे हो उसका कहाँ यूज होने वाला है, एंड स्पेशली फाइनेंशियल डेटा. फेसबुक पे तो आप जो डेटा डालते हो वो चोरी होता ही है, आपको पता ही है, बट फेसबुक पे एटलीस्ट यू डोंट पुट योर फाइनेंशियल डेटा, सो यू आर स्टिल सेव्ड. अगर आप इन सब एप्स पे अपना फाइनेंशियल डेटा डालते हो जस्ट टू थिंक कि ये इट इज वेरी कूल, मैं डायरी में कौन लिखता है, डायरी इज ओल्ड फैशन. तो अगेन वी आर गिविंग एक्सेस to our own data, unauthorized access to our own data. So I would suggest कि उसको हम लोग avoid करें, and definitely मतलब reading about it, reading about personal finance, upgrading your knowledge about personal finance is one that I will suggest, not solely depending on any apps for managing your personal finance. So the next one is, any advice that you want to give the Gen Z who actually want to live a bigger life but don't believe in saving? Yeah, so I mean the only advice I will give them is देखिए क्या होता है, जब तक आपका अर्निंग चल रहा है. अभी शोले मूवी, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू हैव वॉच्ड शोले. ओके, सो शोले मूवी में एक डायलॉग था, जब तक तेरे पैर चलेंगे इसकी सांस चलेगी, राइट? तो हम में से जो जेन ज़ी की हम बात कर रहे हैं, ये वही जनरेशन है कि जब तक उनकी इनकम चलेगी तब तक उनकी लाइफ चलेगी. जिस दिन इनकम बंद हो गई उस दिन क्या करोगे? डू यू हैव एन आंसर फॉर दैट? अच्छा, जिस दिन इनकम बंद हो गई उस दिन क्या करोगे? उस दिन अपने पेरेंट्स से पैसा मांगोगे, अपने पड़ोसियों से पैसा मांगोगे, अपने हु इज गोइंग टू हेल्प यू? And would that help you to hold your head high with respect? अपने आप की रिस्पेक्ट कर पाओगे कि यार मतलब इतना भी मेरे में नहीं है कि मैं अपना खर्चा खुद निकाल पा रहा हूँ करके. What is the use of my education? What is the use of my degrees? There are people who are less educated than me, लेकिन वो फिर भी अपना खर्चा चला पा रहे हैं और मुझे भी पैसा मांगना पड़ रहा है. So living life king size is not a bad idea, but do that after you save some money. So if you are able to, let us say आपका जो भी सैलरी है, if you save 50%, बचा हुआ 50% में you live life king size. बहुत पैसा बचेगा फिर भी आपके पास में, क्योंकि आपको किसी को पैसा देना तो है ही नहीं, आपका घर तो आपके भरोसे नहीं चल रहा है. So still you will have lot of money. But हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमको पूरा 100 का 100 ब्लो ऑफ करना है, एंड वो ब्लो ऑफ करके आप किसी और का नुकसान नहीं कर रहे हो, आप अपना खुद का नुकसान कर रहे हो. एंड फ्यूचर में इफ दैट इनकम स्टॉप्स एंड योर स्मार्टफोन जो आपकी लाइफ है वो स्टॉप हो जाती है, द ओनली पर्सन दैट इज टू बी ब्लेम्ड, वो कौन है वो आप सोच लीजिए. Yes, sir, correct. So, so another one is personal finance or equity, because their families don't do it. So what if we want to start? So how do we start? As in, should we hire someone to learn, or do we do it on our own? So how do you recommend us to do it? Okay, sorry, the voice was breaking, so I could not hear half of the question. Can you repeat? Yes, sir. So what I said is that a lot of people, I mean, they don't have a lot of knowledge. Their families don't have a lot of knowledge regarding personal finance. So what do you recommend us to do? Okay. As in, should we hire? Should we learn from someone, or should we do it on our own? Okay, so first of all, even if you want to do it on your own, you should upgrade your knowledge, because see, मैंने जैसे आपको बताया, risk comes when you don't know what you're doing. So one book if you want, I'll recommend, it is Rich Dad Poor Dad, a must read book for personal finance. एक मूवी अगर मतलब obviously मूवी बताना और easy है, it is a comedy movie, लेकिन शायद से पर्सनल फाइनेंस या उसको समझने के लिए बहुत अच्छा मूवी है, दैट इज फिर हेरा फेरी. 21 दिन में पैसा डबल. सो पर्सन लिविंग इन अ बंगलो कैन, उसको रेंट के घर में रहना पड़ता है चौल में. व्हाई? बिकॉज वो अपना सारा, तो बहुत सारे प्रिंसिपल्स इसमें है वॉरेन बफे के, डू नॉट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट. तो सारा पैसा निकाल के एक ही जगह डाल दिया, कोई उसका ग्राउंड वर्क चेकिंग नहीं किया कि ये पैसा कहाँ जा रहा है, 21 दिन में पैसा डबल क्यों हो रहा है, व्हाट इज द बिजनेस दे आर डूइंग. अभी हम जैसे मैंने आपको बताया, मेनी पीपल आस्क ये वाले आईपीओ में अप्लाई करूं क्या? भाई क्यों करोगे? आपको पता है उस कंपनी के बारे में. इवन इफ आई आस्क यू वन क्वेश्चन, व्हाट इज द बिजनेस ऑफ दिस कंपनी, मोस्ट ऑफ अस डोंट नो. लेकिन इस आईपीओ में अप्लाई करना है क्यों? मेरे फ्रेंड ने किया है.
So if this is the kind of things we are doing, then obviously there is a problem. तो अपना knowledge आप upgrade करो. This book will help you. This movie can help you. इसके अलावा as I told you, मेरे blog का link शायद आप लोगों के पास में है. If not, I'll request my team member to put it on the chat box. तो उसमें there are more than 75 articles in the form of short stories again. क्योंकि I am a storyteller. मैं कोई भी चीज stories के through ही बताना पसंद करता हूँ. So you can read those stories and you will understand a lot of things about it. Okay, sir. Sir, this is a very divided question, as in a lot of people say use this, a lot of people say use that. So what do you think? Should we be using credit cards or debit cards? Okay, so first of all, we need to understand what is the difference between debit card and credit card. Debit card में आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट से जाता है. Credit card में you get a credit for 40-45 days, whatever. Now, if you do not have that money at that point of time, and if you want to use a credit card, then it can come very handy for you. And the only thing you need to understand is whether you are using it for some genuine purpose or you are using to splurge. तो फॉर एग्जाम्पल अगर आई हैव अ हॉस्पिटलाइजेशन, मेरा हॉस्पिटलाइजेशन हुआ है, वहां पे मेरा 1-1.5 लाख का बिल बन गया है और अभी 1-1.5 लाख रुपए मेरे बैंक अकाउंट में नहीं है, राइट? सो फॉर दैट पॉइंट अगर मैं वो 1.5 लाख का क्रेडिट कार्ड स्वाइप कर रहा हूँ एंड स्लोली मैं उसको रिपे कर रहा हूँ, देन इट इज ओके. बट आई हैव सीन पीपल जिनका 20-25 हजार का सैलरी है एंड उनको 50 हजार का फोन खरीदना है और वो 50 हजार का फोन वो क्रेडिट कार्ड स्वाइप करके ले रहे हैं एंड देन उसको EMI पे करते जा रहे हैं. नाउ अगर आपका एक महीना काम करके आपने 25,000 रुपीज अर्न किया और लेकिन आपको फोन 50,000 का चाहिए, अच्छा व्हाट डज द 50,000 का फोन गिव यू? इफ एनीवन कैन टेल मी व्हाट अ 50,000 का फोन गिव यू but nothing great. Yes, तो what features are there जो एक 10-15,000 के फोन में आपको नहीं मिलेंगे? ऐसा कुछ Nothing much. है ना? It is basically your ego. It is basically the attitude of showing off कि मुझे लोगों को दिखाना है कि मैं अमीर हूँ जबकि हम नहीं हैं. So जो एक्चुअल में अमीर होते हैं, you watch Mark Zuckerberg, he wears a very simple T-shirt. You watch Warren Buffett, he wears very simple clothes. On the contrary, आप देखोगे people like विजय माल्या तो ये ज्यादा live life king size करते थे जिनके पास पैसा खुद का नहीं होता है ना? So now whatever names I am taking, it is not about blaming those people or something like that. It is all about understanding कि कई बार हम show off करने के चक्कर में we do not focus on the right things. अगर आपको सही में wealth create करना है, we have to start focusing on the right things and not focus on showing off. So, and considering the bull run, what do you think an early investor should start with in the COVID era? Like what sectors should we think we should focus on while investing? Okay, so I will answer this question very cautiously because this session is a session for academic purposes. So I would like you to upgrade your knowledge. जो question आप पूछ रहे हो, this falls in the domain of advisory, जो वैसे भी SEBI के restriction में है, we cannot do that. And second is, we need to understand कि हमेशा जैसे अभी आप लोग को अगर मैं बताऊंगा कि कोई सेशन अटेंड करो या कुछ करो, व्हाट मेनी पीपल डू इज, मैं कभी भी कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम करता हूँ, मेनी टाइम्स दे विल कम एंड आस्क सर कोई अच्छा फंड बता दो, सर कोई अच्छा स्टॉक बता दो. दैट इज नॉट द आइडिया ऑफ डूइंग दिस सेशन. अगर आपको अच्छा स्टॉक अच्छा फंड चाहिए, यू अवेल माई एडवाइजरी सर्विसेज हो तो मैं आपको वैसे भी बता दूंगा. बट यहाँ पे यू आर हियर टू लर्न, यहाँ पे यू आर हियर टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट. वो शॉर्टकट जो मारने की हमारी कोशिश है कि कहीं से कुछ एक मुझे जैकपॉट मिल जाए जिससे मेरा काम बन जाए, इवन इफ आई टेल यू समथिंग, देयर इज अ वेरी गुड चांस कि वो गलत होगा. बिकॉज आई डोंट नो, टीवी पे जो आप कई सारे देखते हो, मेनी टाइम्स जो स्टॉक वो आपको रेकमेंड करते हैं, पहले उन्होंने अपनी मदर या वाइफ के नाम पे ले रखे होते हैं और उसके बाद आपको वो रेकमेंड करते हैं. And that is the whole game of recommending this whole stock. तो ये जितना भी free tips या free advice का जो शौक है हमारा, this has to subside. Like you would like your efforts to be paid off. कल के दिन जब आप जॉब करोगे, would you like to get a salary or you would like to work for free? So if you want your efforts to be paid off, yes, if you hire an advisor, his or her efforts also need to be paid off. तो ये जो free advice का जो हमारा एक शौक है, जिसकी वजह से हमें कई बार free advice नहीं मिलती है तो हमको लगता है अच्छा गूगल तो free है ही, तो फिर हम गूगल के पास चले जाते हैं. And that is where we go on a totally off track or a wrong channel.
So we need to understand ki there is a lot of effort that goes into it, and if we are hiring an advisor, we need to first of all get our personal profiling done, and then accordingly take the advice. Yes, sir. So over to you, Mithul. Hello, sir. Sir, first I must say this was a very interesting seminar. I've never, seen people teach finance in such a way. And I'll start with questions now. Sir, do you have any appropriate amount of savings that we should have as an emergency fund? And if there is an appropriate amount, can you give us some suggestions on how we should get to that amount? Okay, that's a fantastic question, I would say. So how to arrive at the appropriate emergency fund? I would say whatever is your monthly expense, you multiply it by 6. So that should be your minimum emergency fund. And why I'm telling you this is, let us say अभी पिछले साल जैसे कोविड में या any such situation में people lose a job. अभी जॉब आपका लूज हो गया, यू हैव एन इमरजेंसी, आपके एक्सपेंसेस तो बंद नहीं होने वाले, एंड इट माइट टेक यू अनदर 5 to 6 months टू फाइंड अनदर जॉब. अभी वो 6 months तक आपके एक्सपेंसेस कैसे रन होंगे? तो वो पैसा आपका इमरजेंसी फंड होना चाहिए, उतना मिनिमम. एंड सेकंड इज, जिसको हम इमरजेंसी फंड बोलते हैं, उस पैसे को कभी गलती से भी स्टॉक मार्केट में मत डालो, या उस पैसे को कभी रियल एस्टेट में मत डालो. इमरजेंसी फंड इज सपोज जो एक दिन में लिक्विडेट होता है, आपको एक दिन में पैसा मिलना चाहिए. रियल एस्टेट का पैसा एक दिन में मिल सकता है आपको? नहीं मिल सकता. स्टॉक मार्केट अगर आपको जब पैसा चाहिए, इफ इट इज डाउन, तो वो पैसा जितना आपने डाला है उससे 50% भी मिलने के चांसेस है. सो इमरजेंसी फंड जो है, इसको हमेशा एक लिक्विड एसेट्स में हमें रखना है, एंड 6 months to 8 months इज व्हाट आई वुड सजेस्ट. Okay, sir. Sir, the next question is, what are the few mistakes that people make during, investing in mutual funds? And we as new people, going out to invest, do you have some mistakes for us that we can avoid? Yes, this is again a very nice question. So in fact, I have a video on this. I think it's a 7 to 8 minutes video. I think I can send it to Dheer, and Dheer can circulate with you, or Lakshman, you can post it on the chat please. So this video contains the 6 mistakes जो की है. Short में अगर मैं आपको बताऊं तो one of the biggest mistake is जो पास्ट का ट्रैक रिकॉर्ड देख के हम लोग, पास्ट 1 year रिटर्न्स, 2 years रिटर्न्स देख के जो हम लोग इन्वेस्ट करते हैं while selecting a mutual fund, that is the biggest mistake. या फिर जो रैंकिंग्स वगैरह देखते हैं, रेटिंग्स देखते हैं, अरे ये वेबसाइट ने इतना रेटिंग दिया है, ये वेबसाइट ने इतना रैंकिंग दिया है. सी यू डोंट नो आपने वो रेटिंग वो वेबसाइट ने क्या बेसिस पे दिया है, whether those companies have paid them to give them those ratings or rankings, you don't know. So unless you do your own thorough research, it is blindly going by those can be a big mistake. Okay, sir. So my next question would be, you must be aware of small cases, going trending these days. So are they any better than the mutual funds, the traditional mutual funds? So the biggest problem with this is it is not very transparently regulated by SEBI, and many such products which had come जो कि बहुत SEBI के regulation में नहीं आते हैं, they have managed to cheat the investors or things like that. I'm not saying they will do it, but if it is not regulated, I think we should avoid such risky bets. Okay, sir. And my next question would be, has passive income proved to be better than active income, or is the one better than the other? Do you have any opinion on that? Okay, so first of all, let us understand what we call a passive income and what do we call an active income. So when we say active income, it means you are giving your time. Let us say you go for a job, you do a business, and उससे जो भी आपको income मिल रहा है, that is your active income. पैसिव इनकम का मतलब है यू हैव क्रिएटेड समथिंग जो आपके ज्यादा एक्शन नहीं लिए बिना भी आपको इनकम दे रहा है. नाउ दीज बोथ आर, आई वुड से, कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर. देयर नीड नॉट बी एक अच्छा है या एक बुरा है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक क्रिकेट टीम बनाते हो तो ऐसा नहीं है कि बैट्समैन अच्छा है या बॉलर अच्छा है. आपको बैट्समैन भी चाहिए, आपको बॉलर भी चाहिए. सो आई वुड से जब आप अपना काम करना शुरू करते हो, यू फोकस ऑन योर एक्टिव इनकम, बट साइड बाय साइड इफ पॉसिबल यू स्टार्ट बिल्डिंग अ पैसिव इनकम. पैसिव इनकम का मतलब क्या है? आपने अपना वेल्थ क्रिएशन स्टार्ट कर दिया. लेट अस से यू आर 20-21, आपने अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दिया. बाय द एज ऑफ 40 यू हैव क्रिएटेड अ वेल्थ ऑफ 5 crore rupees. अभी वो 5 crore rupees के से जो आपको पैसिव इनकम आना स्टार्ट होएगा,
तो मे बी उस तब जाके आपको अपने एक्टिव इनकम पे बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. यू कैन रिड्यूस योर वर्किंग आवर्स और यू कैन pursue a hobby or something like that. So all those things can be done. Okay, sir, amazing answer. So my last question would be, sir, you already explained the concept of diversification very briefly in your presentation. My question to you is, sir, is diversification really relevant in this time? Because when COVID happened in March 2020, everything fell down, gold fell down, stocks fell down. So what do you think of that? Okay, that's again a very nice question. So पहली बात तो COVID में gold did not fell. In fact, gold was one which rallied a lot. And you can check it. I think 2000 from April 2019 till August 2020. Gold was one जो कि बहुत 55,000 तक भी उसका प्राइस ये हुआ था. Yes, from when the economy starts picking up. तो again हमको एसेट क्लासेस की क्वालिटी समझने पड़ेंगे कि क्यों एक एसेट क्लास दूसरे एसेट क्लास के ऑपोजिट बिहेव करता है इन द शॉर्ट टर्म. जैसे मैंने आपको अफगानिस्तान का एग्जांपल दिया. If someone is a resident of Afghanistan and they want to run, what can they run away with? So the liquid cash, the gold. Only gold. Liquid cash. उनका करेंसी कोई लेगा नहीं. If someone comes and gives you Afghani currency and wants you to give him rupee, will you take it? No, sir. No ना. तो exactly. तो उनका करेंसी, उनका फिक्स डिपॉजिट, उनका इक्विटी कुछ नहीं चलेगा. The only thing that will be acceptable is gold. But having said that, इसका मतलब ये है क्या कि सब कंट्रीज में गोल्ड ही चलेगा? नहीं. अभी इंडिया में our economy is growing, तो हमको गोल्ड पे डिपेंडेंस रखने का बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है. We can keep gold to the extent of 10 to 15% in our portfolio. So diversification का मतलब क्या है कि जैसे मैंने आपको एक स्लाइड दिखाया था कि हर साल there is a different asset class that performs. There are years जब गोल्ड ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है. There are years जब स्मॉल कैप ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है. There are years जब इंटरनेशनल इक्विटी ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है. और कौन से साल में क्या होगा you don't know. तो इसीलिए if you have a portfolio जहाँ पे जब हम एक क्रिकेट टीम बनाते हैं हमको नहीं पता है कि आज के मैच में कौन अच्छा खेलने वाला है. तो हम एक क्रिकेट टीम में सारे प्लेयर्स को रखते हैं so that अगर ये नहीं चला तो ये खेल लेगा, ये नहीं चला तो ये खेल लेगा. एट टाइम्स ऐसा भी होगा कि पूरी टीम 68 पे ऑल आउट हो सकती है. आई एम नॉट सेइंग कि वो पॉसिबिलिटी नहीं है, बट उसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी टीम में किसी को लेंगे ही नहीं. वी स्टिल हैव टू टेक डिफरेंट टाइप ऑफ प्लेयर्स. एक हमको पिंच हिटर भी लेना पड़ेगा, एक डिफेंसिव प्लेयर भी लेना पड़ेगा, थिंग्स लाइक दैट. Okay, sir. Got it clearly. So there was this question earlier in the chat box which said, what about those investors who are planning to live outside? How should they invest? Outside India, how should they invest? Yes, I mean there is no reason why they should not invest or anything like that because age उनका भी बढ़ने वाला है, रिटायर उनको भी होना ही है. So इन्वेस्ट आप क्यों कर रहे हो? आप अपने रिटायरमेंट को फंड करने के लिए, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए कर रहे हो. एंड इनफैक्ट इंडिया में अभी हम बोलते हैं कि एफडी का इंटरेस्ट रेट इज 5.5, पोस्ट टैक्स 4%. अगर आप डेवलप कंट्रीज की बात करोगे वहाँ पे एफडी का जो इंटरेस्ट रेट है इट इज इन द रेंज ऑफ 1%. in some countries it is below 1% also. तो अगर ये इंटरेस्ट रेट है वहाँ पे तो ऑब्वियसली इतने कम में आपका काम होगा नहीं. तो यू विल हैव टू हैव अ बिगर कॉर्पस, तभी जाके आप पैसिव इनकम पे अपना रिटायरमेंट फंड कर पाओ. Yes, sir, got it. So do others have questions regarding in the chat box somewhere? What questions we have in the chat box? Any question is pending? So we are waiting for the audience. I think we cleared everything. Okay, no problem. Sir, Okay, Bhakti asks, what are your views on cryptocurrency? Okay, so before I answer that, if I can ask you, Bhakti, and does Bhakti have an option to unmute herself? Yes, sir. Okay, so Bhakti, if I want to understand from you, what do you mean by cryptocurrency? Do you have any idea? What is cryptocurrency?
It is basically a digital currency that has not been regulated. Okay. And going on the loop, we don't know where it is coming from, where it is going, but it's just in the, it's kind of in a loop right now. Where is it exactly? We don't know that. Exactly. That's my point. We are talking about something which we don't know, how is it exists, or things like that. Okay, let me give you another example. Any of you plays mobile games or Ludo or something like that on mobile? Okay, so let us say you want to buy some coins on that game. So you have to purchase that. You know that you can pay some money and you can purchase that. Okay, but if you have a lot of points, can you sell it and get money? इसका मतलब क्या हुआ? अच्छा, there is another way. Let us say Bhakti has accumulated a lot of points in Ludo. Let us say she has accumulated 1 lakh points, and I need those 1 lakh points, and I agree to pay Bhakti कि अच्छा ये 1 lakh points के सामने I will give you 1000 rupees. ठीक है? Then can you sell it to me? It will be a little risky, but then. Risky for whom? Me. It is not risky for you. It is risky for me, because I am buying those coins from you, right? Right. So basically, this is running on a finding a bigger fool theory. Now, if I buy those coins from you for 1000 rupees, and I ask Dheer that I want to sell it to you for 2000 rupees because I think that maybe Dheer is more interested in these coins. Now, there is no underlying. ये coins exist करते ही नहीं है. There is nothing underlying. There is no regulation. It is just about अच्छा मैंने जैसे धीर को 2000 में sell किया, मितुल comes and says कि अरे एक दिन में ये 1000 का 2000 हो गया, एक दिन में पैसा डबल हो गया. Now everyone is interested in it. कि एक दिन में पैसा डबल होता है. What is existing? Nothing. So this is just about finding a bigger fool theory. हमको हमसे बड़ा फूल ढूंढना पड़ता है जिसको हम ये बेच सके, एंड देन इसका जो ग्राफ है वो प्लॉट हो जाता है, और वो प्लॉट देख के हमको लगता है वाओ दिस इज ग्रोइंग लिप्स एंड बाउंड्स, बट व्हेन वी लुक एट द अंडरलाइंग देयर इज एब्सोल्युटली नथिंग. सो इन माय पर्सनल ओपिनियन आई हैव डिसाइडेड not to put a single rupee in cryptocurrency. So that is what I can tell you. Whether you want to do it or not, I'll leave it up to you. Thank you, sir. Sir, there was a question on chat box. This guest asks, what if young investors wants to settle out of India? Then how can they start planning to invest? Okay, so see, out of India or in India will not be that much bigger of a concern. What you need to understand is आपको कब जाना है, what is the amount you need. So for example, आपने सोचा है कि I want to settle outside India after 10 years. तो 10 years के बाद में मुझे out of India settle होने के लिए कितना पैसा लगेगा, मुझे वहाँ पे घर खरीदना है, या what do I want to do with it. तो अभी मुझे अगर समझ लो 10 साल के बाद में 5 crore rupees चाहिए, I will back calculate कि हाँ 10 साल बाद में मुझे 5 crores accumulate करना है, तो what is the amount I need to invest every month, or things like that, and accordingly I will get that money. Simple. Yes, sir. Sir, Pragya Sachdeva has a opinion on cryptocurrency. She says instead of being unregulated, we would say crypto is decentralized. Okay. So I follow a principle in life. If there is a question, I will answer. If there is an opinion, I will respect. Perfect, sir. Do we have any other questions? We'll wait for some time. So I have a question. So what do you think about investing in the financial markets outside, in the West, in the US or somewhere? Because I think a lot of people have started doing it. So what do you think? What's your opinion? Should we be doing it from now or later? Okay, so as a part of diversification, it can be a good idea. Let me tell you that, as of now, the best growth in equity that is happening across the world is happening in Indian markets, right? So foreigners are coming and wanting to invest in India because they cannot see that kind of a growth over there. You will be surprised to know कि अगर if I talk about US markets, वहाँ का अगर कोई fund manager 5 to 6% annual return दे देता है अपने investors को, तो वो लोग उसको भगवान समझते हैं.
5 to 6% एनुअल रिटर्न देता है, तो क्योंकि वहां पे उतना ही ग्रोथ उनको मिल पा रहा है, एंड that is why they are coming to Indian markets कि यहाँ पे ज्यादा growth वो दिला पाए, and so that they are able to garner more money. Having said that, yes, as a matter of diversification, so let us say you want to invest 100 rupees, investing 10 to 15 rupees in the overseas market, international markets can be a good idea, provided you have the sufficient study and knowledge about it. Thank you. Okay, sir. Now Pragya has elaborated. She says, what are your thoughts on the fact that RBI is printing money and has such authority? India's economy isn't very strong. World is becoming more digital every day. So she's basically asking for your opinion. Okay, so again, I think you have answered the question yourself. When RBI prints money, when you go back with that note, you have a 500 rupees note in your pocket, and जब ये नोटबंदी हुआ था तभी वो नोट लेके जब आप वापस गए थे तो आपको नोट आपका रिप्लेस करके मिला था ना, एक्सचेंज करके मिला था ना, राइट? आज अगर आपके जेब में वो नोट है तो देयर इज अ आरबीआई स्टैंडिंग बिहाइंड इट कि यस, इफ नोबडी, अगर एक आपके पास में एक देयर इज अ टॉर्न नोट, आपके पास एक फटा हुआ नोट है जो कोई शॉपकीपर नहीं लेता है, कैन यू स्टिल गो टू अ बैंक एंड गेट दैट नोट रिप्लेस, यस और नो? क्यों? Yes, sir. क्यों? Why do you get it replaced? मतलब क्यों आपको रिप्लेस करके मिल जाता है? Because it's regulated. Because the RBI standing behind it कि हाँ ये नोट मैंने दिया है, ये नोट मैंने दिया है, I am ready to replace it. You tell me one person जो किसी भी क्रिप्टो करेंसी के पीछे खड़ा है कि अगर कोई आपसे क्रिप्टो करेंसी नहीं खरीदता है, you come to me, I will give you money for that. You tell me one person. The answer lies there. Okay, sir. I think you explained it very nicely. I think we are done with the questions. I'd like to ask Umang to continue. So, on behalf of the students, staff members, and members of the Finance and Investment Cell, I would like to thank Saurabh sir for taking time out to speak to us today on personal finance and investment. The information you provided to us was really insightful and timely, and I'm sure all of us had a lot to learn today. Last but not the least, I would like to thank the entire SVKM management, our principal Dr. Anju Kapoor ma'am, IQAC coordinator Smriti Nanavati ma'am, BMS department coordinator Mayur Vyas sir, and our teacher in charge Lokesh sir. I would also like to extend a gratitude to Sharon ma'am for helping us throughout the event, and thank you to all the participants for joining us today. Have a great day ahead. Also, we'll be sending the feedback form link on the chat box right now, and all the SY students and the guests have to fill the form through this link. The TY students and the FIC members will be filling the form through another link, which will be shared on the respective WhatsApp groups. Thank you. Okay, so are we done? Yes, sir. Okay, so thank you so much. It was lovely talking to all of you, and thanks for Thank giving you, me this sir. opportunity, and God bless you all. Thank you, sir.